अच्छा, आपने जैसे कि स्क्रीन शेयर की हुई है ना, तो आई बिलीव कि मैं अभी से ही इसको यूट्यूब लाइव स्ट्रीम कर देता हूँ ताकि ऑडियंस को एटलीस्ट ये स्क्रीन शुरू में नजर आए, तो वी हैव समथिंग टू शो। इफ यू अलाउ मी तो अब मैं लाइव स्ट्रीम शुरू कर देता हूँ यूट्यूब पे, इफ यू अलाउ मी। यस सर, आप यूट्यूब पर लाइव स्ट्रीम शुरू कर दें, बट मैं ये चाहता हूँ कि 5 मिनट तक क्लिक करें ताकि फिर ज़्यादा वेट ना करना पड़े। हाँ श्योर, तो यूट्यूब लाइव स्ट्रीम जैसे आप मुझे इशारा देंगे मैं उस वक्त स्टार्ट करूंगा। बस सर, लाइक सिंस इट्स 3:51, तो हम 3:55 तक यूट्यूब लाइव स्ट्रीम स्टार्ट कर दीजिएगा आप, ठीक ताकि है मैं ज़्यादा ऑडियंस को वेट भी ना करना पड़े। ठीक है, 3:55 पे ना ये यूट्यूब लाइव स्ट्रीम शुरू मैं स्टार्ट एक क्लिक कर दूंगा, ठीक है। ओके।
Hello and welcome to the Pharmacist Channel webinar. A very warm good evening to all of you. I am Kenza Mazhar, your host and the event manager at the Pharmacist Channel. Assalamualaikum guys, I am Hassan Freed and I am the content planner of the Pharmacist Channel. And today I am with Kenza, will be hosting today. To make sure we are helping you as best as we can, we have a chat box to source your questions. Please leave your questions there. I'll bring them up in the conversation if necessary, or we will have time to answer in the end. To keep the quality of time functional, kindly mute yourselves. Okay, I am super excited to have you all here. Excited about the conversation we are gonna have today. Starting with a brief introduction of the Pharmacist Channel. It is basically a student-run platform that was launched by Muhammad Rafi, a pharmacy student from Ziauddin University. The main idea behind this was to build a community that helps each other. Since we all are pharmacy students and we are busy most of the time studying and preparing for exams, this platform helps students focus on interpersonal skills and other soft skills besides studies. We provide opportunities to develop communication skills and confidence. For future, we want to try BCQs-based tests for several subjects and other professional exams. If you visit our website, you will find a lot of articles that will surely help you in many ways. Now guys, you must be wondering why research is important for us, especially for undergraduate students. Why research important here? So I've compiled these in 4 points. And number 1 is to build knowledge and facilitate learning. Research will not only help you in your professional life, but it will also have a lot of impact in building your knowledge, and it will broaden your knowledge. Number 2 is it is a mean to understand issues and create public awareness. So research basically creates public awareness. Not only सिर्फ आप ही नहीं knowledge gain करते हैं, and not only you, but जो public है वो भी उसमें भी awareness create होती है regarding new researches. Number 3 is to develop critical thinking skills. Critical thinking skills improve होती हैं जिसकी वजह से curiosity, creativity और problem solving abilities भी लोगों में आती है, students में, undergraduates में. It also broadens and deepens learning, and the student also learns a lot of skills. Now the next is that what are the main takeaways from this webinar? So from this webinar, you will learn 3 basic things. Number 1 is how to approach research as an undergraduate student. Plus, what are different types of research in undergraduate, and what kind of publishable research can be ethically performed in Pakistan. So these set of things you will learn in this webinar, and I hope it will be an amazing session. I am profoundly delighted to take an opportunity to introduce our guest speaker. He, on our insistence, has graced us with his presence for today's session that will reward our participants with immense knowledge. By academics, he is a PharmD gold medalist and a neuropharmacologist. By profession, he had worked as a researcher at University of Alabama at Birmingham and as an assistant professor at Dow College of Pharmacy. Currently, he is a scientific writer at Novus Biologicals USA since 2017 and assistant professor, Department of Basic Medical Sciences, Faculty of Pharmacy at Salim Habib University since 2020. He has an amazing personality. And when I say the word amazing, I actually mean it. He also has a fictional book club in which he interviews great authors
from Pakistan and US as well. I am pleased to announce that we have with us Dr. Jamshed Arsalan. Welcome, sir. Okay. Thank you so much. You're welcome, sir. Okay, so there is a small announcement for all the participants. Your attendance is going to be marked through the exit ticket, and the link to the exit ticket will be provided to you through your respective WhatsApp group. So kindly mark your attendance over there. Thank you. Okay, thank you, Kinza, for your kind introduction. The topic, as you have heard, is fundamentals of research for undergraduates. I was noting the points that Hassan Fareed mentioned about why to do research. और जो मेरे पास कुछ पॉइंट्स थे, अब देखिए मेरे पास जो पॉइंट्स है ना, मैंने सिंपल लिखा हुआ है कि आज का जो हम सेशन प्रोसीड करेंगे ना, उसमें सबसे बड़ी जो चीज है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, ये देखिए ये मेरे नोट्स हैं, इसमें कुछ भी नहीं लिखा, सबसे ऊपर लिखा हुआ है व्हाई। तो जिस तरह फ्रेडरिक नीचे ने कहा था कि दोज हु हैव अ व्हाई कैन बेयर ऑलमोस्ट एनी हाउ टू डू रिसर्च, ये आपको पता चल जाएगा। लेकिन जब तक आपका व्हाई क्लियर नहीं है ना, व्हाई यू आर डूइंग रिसर्च, उस वक्त तक आपको आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं होंगे। ठीक है, तो मेरा सबसे पहला जो टास्क है ना, वो आप लोगों को कन्विंस करना है कि रिसर्च में आप इसलिए ना आए कि आपके पास आप जॉबलेस हैं, या इसलिए ना आए कि आपके रिश्ते नहीं आ रहे। रिसर्च एक वर्थ परसुइंग एफर्ट है। तो अभी जो डॉक्टर हसन फरीद ने जो बातें मेंशन की, उसके अलावा कुछ मेरे भी पॉइंट्स हैं कि व्हाई शुड वी डू रिसर्च। तो अब उसमें, और दूसरा, जैसे जैसे हम साथ साथ चलते रहेंगे, इसको मैं कॉन्वर्सेशन के तौर पे लूंगा। तो मैं आप चैट सेक्शन पे बहुत ज्यादा तवज्जो दूंगा, इसीलिए कोई मेरे पास जो है पावर पॉइंट नहीं है। कुछ मैंने एडिशनली कुछ रखा हुआ है पावर पॉइंट के लिए, इफ आई फील द नीड देन आई कैन शो इट, अदरवाइज हम ये कॉन्वर्सेशन करेंगे। ठीक है, तो पहला मेरा टास्क ये है कि व्हाई पे सबसे पहले कुछ आपको कन्विंस किया जाए कि आप क्यों करें। ठीक है, तो अभी फरीद साहब ने जो बताई कुछ वजूहात कि इस वजह से आप रिसर्च करें, उसमें मैं ऐड करना चाहूंगा बिल्डिंग योर सीवी। अब ये कैसे ऐड होता है? ये ऐसे ऐड होता है कि आपके पास एक कैंडिडेट आया, अब वो जो कैंडिडेट है उसका रिसर्च एक्सपीरियंस है, और वो रिसर्च एक्सपीरियंस कैन बी एन एब्स्ट्रैक्ट पब्लिश्ड इन अ नेशनल और इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस। ठीक है, रिसर्च वो है कि जो पब्लिश हो कहीं ना कहीं, उसको हम रिसर्च मानते हैं। रिसर्च एक्सपीरियंस हम उसको कहते हैं कि हमने उसकी लैब में काम किया, 1 मंथ काम किया, 15 दिन काम किया, 1 साल काम किया। लेकिन जो रिसर्च आपकी सीवी पे काउंट होगी, वो हमेशा याद रखिए कोई ना कोई आपको एब्स्ट्रैक्ट या पेपर की फॉर्म में आपको पब्लिश करना होगा। दैट इज योर एविडेंस, जिसको के गूगल लिंक से आपका एम्प्लॉयर भी उसको ढूंढ सके। ठीक है, तो अब एक सीवी आई है जिसमें कैंडिडेट के पास रिसर्च एक्सपीरियंस है, और एक है विदाउट इट। अब आप खुद बताएं कि एम्प्लॉयर किसको हायर करेगा। ठीक है, तो पहला रीजन जो मैं आपको दे रहा हूं ना रिसर्च करने का एज एन अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट, कि आप तो अभी तो यार मैं सेकेंड ईयर की स्टूडेंट हूं, अभी तो मैं थर्ड ईयर की स्टूडेंट हूं, व्हाई शुड आई बॉदर। तो मैं आपको कन्विंस करने की कोशिश करूंगा कि यू मस्ट बॉदर। ठीक है, तो ये उस सूरत में भी अप्लाई होता है कि आपका माइंड ये है कि नहीं यार, आई एम गोइंग टू बी अ फार्मासिस्ट इन कैनेडा, आई एम गोइंग टू बी अ फार्मासिस्ट इन ऑस्ट्रेलिया, मैं उन कंट्रीज में जाऊंगी, और मेरा तो रिसर्च से कुछ है ही नहीं, मैंने कौन सा एमफिल पीएचडी करना है। स्टिल जो मैंने आपको रैशनल दिया ना बिल्डिंग ऑफ सीवी का, ये आप पे भी अप्लाई होता है। आप जब अपनी एप्लीकेशन फिल करेंगे, ऑफ कोर्स आपका एक्सपीरियंस, फील्ड एक्सपीरियंस काउंट होगा, फाइन, लेकिन जब आपकी सीवी जाएगी, उस सीवी पे जब आपके पास एक्स्ट्रा 1 या 2 पोस्टर्स होंगे ना, इट विल एड अप टू योर सीवी। ठीक है, तो ये मेरा पहला रैशनल है। अगर आप अभी भी कन्विंस नहीं हुए तो मेरे पास सेकंड रैशनल है।
सेकेंड रैशनल, आप लोगों ने बहुत सारे मीम्स देखे होंगे कि भाई हर फार्मेसी का जो स्टूडेंट है उसने मीम लगाए होते हैं कि भाई फार्मासिस्ट के पास तो टाइम ही नहीं होता। हर डॉक्टर ने भी इस तरह का लगाया होता है। फाइन, आई एग्री विद इट, लेकिन फिर भी खुद आप इंट्रोस्पेक्शन करें और अपने आप से पूछे कि कोई ना कोई तो यार टाइम होता है ना दिन का, जब आपको फील होता है कि यू आर वेस्टिंग टाइम, या कोई गोल पोस्ट नहीं है, कोई एक टारगेट नहीं है कि उसको अचीव करने के लिए आप अपना टाइम यूटिलाइज करें। तो मेरा दूसरा रैशनल वाई का ये है कि अवॉइड वेस्टिंग टाइम। रिसर्च अलाउज यू टू अवॉइड वेस्टिंग टाइम। ठीक है, तो आपका टाइम फिल अप हो जाता है। जैसे आपके पेपर्स एंड हुए, उसके बाद कुछ टाइम आपके पास होता है सेमेस्टर ब्रेक का, तो मैं आपको कन्विंस करने की कोशिश करूंगा कि ठीक है आप फील्ड वर्क भी जरूर करें, हर एक चीज इंपॉर्टेंट है। इंडस्ट्रियल की आपने इंटर्नशिप करनी वो भी जरूरी है, कम्युनिटी फार्मेसी की इंटर्नशिप, एवरीथिंग इज एसेंशियल, लेकिन आजकल के दौर में उसमें रिसर्च को भी आप ऐड करें। अच्छा, ये दो मेरे रीजन हो गए। तीसरा मेरा रीजन ये है कि रिसर्च अलाउज यू टू लुक एट थिंग्स डिफरेंटली। तो जो साइंटिफिक रिसर्च है ना, ये आपका पॉइंट ऑफ व्यू, आपका चीजों को देखने का स्टाइल और आपकी गुफ्तगू का स्टाइल ये चेंज करती है। ठीक है, रिसर्च से आपको पता चलेगा, जब आप साइंटिफिक दुनिया में आएंगे आपको पता चलेगा कि साइंटिफिक एविडेंस क्या होता है। ठीक है, ये ऐसा नहीं होता कि जैसे मैं कहूं कि भाई मैंने ड्रैगन देखा था, अब ये तो मेरा क्लेम हो गया। अब अगर आप बात सिर्फ इसलिए मान गए कि यार डॉक्टर जमशेद ने पीएचडी किया हुआ तो सही कह रहे होंगे, तो इसका मतलब यह है कि आपने जस्ट एक एक्सपर्ट की बात को आपने मान लिया। तो दैट इज वन फॉर्म ऑफ एविडेंस, बट दैट इज नॉट साइंटिफिक एविडेंस। साइंटिफिक एविडेंस के लिए मुझे आपको वो ड्रैगन दिखाना होगा, मुझे कोई उसकी वीडियो दिखानी होगी आपको, मैं कोई एक्सपेरिमेंटल प्रोटोकॉल जनरेट करूंगा कि भाई आप भी वो ड्रैगन देख सकते हैं, ताकि हर किसी के लिए क्लियर हो जाए। मैं सिर्फ ये कह के कि यार मैंने एक ड्रैगन देखा था, आप मुझसे कोई क्वेश्चन करें, मैं कहूँ यार वो तो इनविजिबल है। अच्छा, आप कहें कि अच्छा मैं उस ड्रैगन पे पाउडर फेंकूंगी ना तो उसकी प्रेजेंस पता चल जाएगी, मैं को नहीं वो पाउडर से भी नहीं पता चलता। तो मैंने तो कोई ऐसा एक्सपेरिमेंटल क्राइटेरिया ही नहीं छोड़ा कि आप ड्रैगन को देख सकें। तो आप कहेंगे कि डॉक्टर जमशेद आपकी हम सारी बातें मानते हैं, बट द थिंग दैट यू आर क्लेमिंग इट डज नॉट हैव साइंटिफिक एविडेंस। ये आपकी अपनी परसेप्शन, आपके अपने बिलीफ की हद तक तो ठीक है, बट दैट इज नॉट साइंटिफिकली ट्रू। ठीक है, तो जब आप रिसर्च की दुनिया में आएंगे ना तो यू विल लुक एट थिंग्स डिफरेंटली। आपको एविडेंसेस को इवेल्युएट करने का मौका मिलेगा और आपको पता चलेगा कि किस चीज का एविडेंस ज्यादा है और किस चीज को परस्यू किया जाए। और मेरी जो चौथी रीजनिंग है कि व्हाई डू रिसर्च, चौथी रीजनिंग मेरी ये है कि जब आप अपने पॉइंट ऑफ व्यू को बेहतर करेंगे ना, आपसे अटैच जो लोग हैं उनके पॉइंट ऑफ व्यूज बेहतर होंगे और करते करते हमारी सोसाइटी बेहतर होगी। इसकी एक मिसाल ये है कि जैसे कि कोई कहे कि यार फलाना लीडर आएगा ना सारे मसाइल हल कर देगा। ठीक है, अब ये क्लेम है, तो जब आपकी साइंटिफिक अंडरस्टैंडिंग होती है आप कहते हैं अच्छा वो कैसे ठीक करेगा, क्या करेगा, इकोनॉमिकली क्या करेगा, पॉलिटिकली क्या करेगा, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का क्या करेगा, गरीबों के लिए क्या, मतलब आप उसको ओपन करेंगे ना उस चीज को, क्योंकि आप साइंटिफिकली माइंडेड पर्सन, आप क्लेम्स पे नहीं जाते। अनलेस यू अंडरस्टैंड अ थिंग you will not be able to manipulate it, you will not be able to use it। जैसे कि अगर मेडिसिन की टर्म में देखें तो लोग कहते हैं भाई ये फक्की खा लो सब कुछ ठीक हो जाएगा, लेकिन जब आप साइंटिफिकली ट्रेंड होंगे देन यू विल आस्क कि ओके फक्की खाने से ठीक होऊंगा मैं, फाइन, कैसे ठीक करेगा, इसके अंदर इसके इंग्रेडिएंट्स क्या है, ठीक है, इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है, क्या आपने किसी पे टेस्ट किया या सुनी सुनाई बात कर। ठीक है, तो मैंने जो आपको 4 रीजंस दिए, पहला रीजन मैंने आपको ये दिया कि आपकी सीवी बिल्ड होगी, सेकंड वेस्टिंग टाइम से आप बच पाएंगे, और तीसरा लुकिंग एट थिंग्स, आपको एविडेंस को एवेल्युएट करना आएगा, और नंबर 4 ये आपकी ओवरऑल सोसाइटी के लिए बहुत अच्छा रहेगा। ठीक है, तो रिसर्च के ये मैंने आपको वाई की रीजंस दिए। अब मैं चैट सेक्शन को दोबारा आ सकता हूं, आप लोगों के कोई क्वेश्चन हो तो आप जो है साथ साथ करते रहे। अच्छा, मेरी आवाज आप क्लियर सुन सक रहे हैं? ओके, आई बिलीव के
यहां तक आप लोगों का क्वेश्चन नहीं है, ठीक है। मैं समराइज भी कर रहा हूं कि इफ यू मिस समथिंग, कि कोई चीज आपको ना पता चले, तो मैंने आपको 4 रीजंस दिए वाई के, ठीक है। बिल्डिंग सीवी, फिलिंग अप योर टाइम, वे ऑफ लुकिंग एट थिंग्स। और जब आपका सूरत हाल बेहतर होगी तो आपके फ्रेंड्स हैं, आपकी फैमिली है, और आप ही से तो मिलकर सोसाइटी बनती है, आप ही से तो मिलकर एक मुल्क बनता है, और आप ही तो अपना लीडर सेलेक्ट करते हैं, ठीक है, वन वे और दी अदर, तो सोसाइटी बेहतर होगी। तो ये 4 रीजंस मैंने दिए। अब जो मैंने सेकंड पॉइंट अपनी उसमें पेपर पे लिखा हुआ है, दैट इज रिसर्च, ठीक है। सिर्फ मैंने रिसर्च की टर्म लिखी। तो इस पे मैं क्या ऐड करना चाहूंगा कि रिसर्च होती क्या है। अब इसको पहले समझने की कोशिश करें कि ये है क्या। तो रिसर्च जो हम टर्म यूज करते हैं ना, दैट इज अबाउट न्यू नॉलेज की क्रिएशन, ठीक है, न्यू नॉलेज की क्रिएशन, ठीक है। तो न्यू नॉलेज क्या चीज है? जैसे फॉर एग्जांपल कोई भी चीज न्यू नॉलेज हो सकती है। अब मेरे सामने जो एग्जांपल है, फॉर एग्जांपल मैं अभी मीटिंग स्टार्ट होने से पहले ये मतलब कॉफी पी रहा हूं, ठीक है। अब देखिए कोई भी चीज मैंने कहा न्यू नॉलेज हो सकता है, तो आप इसको जरा समझने की कोशिश करें। अब आप ये भी एक क्वेश्चन बना सकते हैं, रिसर्च क्वेश्चन, कि भाई जो प्रेजेंटर्स होते हैं, जो वेबिनार में प्रेजेंटर आते हैं, वो उनके जो कप्स होते हैं ना, वो डार्क कलर के होते हैं ज्यादातर, ठीक है। दिस इज माई हाइपोथेसिस। हो सकता है हो सकता है ना हो, लेकिन आप गूगल करें कोई पता नहीं चल रहा, तो दैट कैन बी योर रिसर्च क्वेश्चन। अब आप कहेंगे कि सर ये क्या फजूल बात है, तो उसका मैं आपको आंसर ये दूंगा कि रिसर्च इटसेल्फ हो सकता है उसका कोई फंक्शन निकल आए, हो सकता है कि उसका कोई फंक्शन ना निकल आए। जैसे आइंस्टाइन ने जब E = mc² डिस्कवर की थी ना, कि E इज एनर्जी = मास टाइम्स जो है फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट, यानी कि उसकी जो स्पीड ऑफ लाइट है स्क्वायर, E = mc²। उसको नहीं पता था कि इस बेसिस पे एटॉमिक बॉम्ब बनेगा, ठीक है। तो रिसर्च जो है दैट इज अबाउट न्यू नॉलेज क्रिएशन, दैट इज नॉट अबाउट क्लेम्स, क्योंकि क्लेम्स तो बहुत सारे कर सकते हैं, भाई ये पक्की ठीक करेगी, दैट इज अ क्लेम। ये रिसर्च इसको क्या चीज बनाएगी कि आप उसका HPLC एनालिसिस करेंगे, उसके इंग्रेडिएंट्स टेस्ट करेंगे, उसकी फार्माकोलॉजिकल स्टडीज करेंगे, ह्यूमन स्टडी करेंगे, एनिमल स्टडी करेंगे, और फिर पता चलेगा ये पक्की तो बहुत सारी चीजें ठीक करती है, देन इट इज अ रिसर्च। उससे पहले वो सिर्फ क्लेम था, ठीक है। तो रिसर्च क्या चीज है? न्यू नॉलेज क्रिएशन। अब जाहिर बात है इसके अंदर बहुत ज्यादा गहराई है, मैं बहुत ओवर सिंप्लीफाइड वर्जन बता रहा हूं, क्योंकि मेरी एस्टिमेशन ये है कि मैं अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट से बात कर रहा हूं, जो कि अभी उनकी फॉर्म डी भी अभी शायद कंप्लीट ना हो, ठीक है। तो पहली बात मैंने आपको रिसर्च में ये बताई, न्यू नॉलेज क्रिएशन एंड हाउ इट इज डिफरेंट फ्रॉम अ मियर क्लेम। अब सेकंड चीज हम देखते हैं कि भाई रिसर्च की टाइप्स क्या क्या है। तो अब देखें आइंस्टाइन की रिसर्च को जहन में रखें, उसने क्या डिस्कवर किया? E = mc², ये इक्वेशन उसने डिस्कवर की। अब ये जो इक्वेशन डिस्कवर की और इसका भी कोई यूज आपको नहीं पता, और ये नेचर इटसेल्फ के बारे में बात करती है, कोई बेसिक नॉलेज देती है, वी कॉल इट बेसिक रिसर्च, ठीक है। बेसिक रिसर्च, जैसे आपकी बहुत सारी रिसर्च जो आप एनिमल पे करते हैं ना, वो तो जब ह्यूमन पे करेंगे, ह्यूमंस को ठीक करता है नहीं करता वो बात की बात है। जो आप एनिमल्स पे रिसर्च करते हैं, माउस पे मैंने रिसर्च की है, मुझे रैट्स पे रिसर्च करने का मौका मिला, सी एलिगांस पे मिला, रैबिट्स पे मिला, तो वो जो रिसर्च थी उस पे जो मैंने चीजें चेक की, या आइंस्टाइन ने जो E = mc² किया, क्या अभी उसके आपको यूजेस का नहीं पता, तो दैट टाइप ऑफ रिसर्च इज कॉल्ड बेसिक रिसर्च, कि ये बेसिक रिसर्च है। अच्छा, अब क्लिनिकल या ट्रांसलेशनल रिसर्च क्या है? कि भाई बेसिक रिसर्च में मैंने बताया कि ये टैबलेट इतने माइस पे मैंने इसको टेस्ट किया था, उनकी मेमोरी इंप्रूव हुई थी। अच्छा, ये तो बेसिक रिसर्च है। ये ट्रांसलेशनल या क्लिनिकल तब होगी जब मैं क्लिनिकल ट्रायल करूंगा, जब ह्यूमंस का डाटा लूंगा, क्योंकि ह्यूमंस का डाटा हमसे ज्यादा रेलेवेंट है। ऑफ कोर्स माइस एंड रैट्स आर मैमल्स, एक हद तक हम भी मैमल्स हैं, उनकी मशीनरी भी खुदा ने वही रखी है जो हमारी रखी है, फाइन। उनकी जो चीजें हम पे फिट होती हैं, क्योंकि हमारी मशीनरी, हमारा प्रोटियोम, हमारा जीनोम किसी हद तक मैच करता है, ठीक है, क्योंकि हम
कॉमन एंसेस्टर शेयर करते थे। फाइन, तो दिस वुड बी बेसिक रिसर्च। और क्लिनिकल रिसर्च क्या होगी कि जब उसकी ह्यूमंस पे आप ट्रांसलेशनल वैल्यू चेक करेंगे, जब उसकी एप्लीकेबिलिटी एग्जैक्ट ह्यूमन पे आप चेक करेंगे। ठीक है, तो दीज आर टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिसर्च। अच्छा, ये रिसर्च की दो टाइप्स हैं, लेकिन एक और भी टाइप्स ऑफ रिसर्च है। ये जो मैंने आपको दो टाइप्स बताई ना, बेसिक एंड क्लिनिकल या ट्रांसलेशनल, इसको आप क्वांटिटेटिव भी कह सकते हैं। इसमें ऑब्जेक्टिविटी इन्वॉल्व है। ऑब्जेक्टिव कि वो चाहे आप करें चाहे मैं करूं, बात एक ही है। लेकिन एक क्वालिटेटिव रिसर्च भी होती है। अब आप कहेंगे क्वालिटेटिव रिसर्च ये क्या चीज है? तो ये होती है कि जब आपके सर्वे या क्वेश्चनेयर आपने दिया ना लोगों को, और उसका ओपन एंडेड क्वेश्चन रखा, जैसे आपने कहा कि भाई व्हाट आर योर थॉट्स ऑन दिस वेबिनार। अब इसमें कोई अच्छाई बुराई नहीं है, इसमें कोई हायरार्की नहीं है, आप कोई भी थॉट्स दे सकते हैं। तो दिस विल बी क्वालिटेटिव रिसर्च। ठीक है, अगर तो इसको हाइपोथेसिस बेस करते हैं कि जिन लोगों की इस वेबिनार के बारे में थॉट्स बेहतर है, उनका एज ग्रुप ही है, अगर मैं इस तरह का क्वेश्चन करने शुरू कर दूं, देन इट कैन बिकम अ बेसिक रिसर्च। ठीक है, तो इस बारे में मैं कुछ क्वेश्चन आंसर में इसको एलैबोरेट कर सकता हूं। ठीक है, तो मैंने क्या बताया कि रिसर्च की दो टाइप्स है, क्वांटिटेटिव, क्वालिटेटिव। क्वालिटेटिव ओपन एंडेड क्वेश्चन होते हैं, भाई आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा है। ठीक है, या जैसे आजकल भाई इस हुकूमत के बारे में आपके क्या ख्याल है। अब ये कोई गलत सही नहीं है, ये जस्ट आपसे पूछा गया, इंटरव्यू किया गया, तो दैट इज क्वालिटेटिव रिसर्च। उसमें इंटरव्यूज किए जाते हैं, फोकस ग्रुप रखा जाता है, इस तरह की चीज। ठीक है, और सेकंड टाइप मैंने क्या बताया, क्वांटिटेटिव। और क्वांटिटेटिव में अमूमन जो अंडर ग्रेजुएट फार्मेसी के स्टूडेंट्स हैं वो क्वांटिटेटिव में रहते हैं, और उसी ही के अंदर दो टाइप्स हैं क्वांटिटेटिव ही के अंदर, एक है बेसिक रिसर्च और एक है क्लिनिकल या ट्रांसलेशनल रिसर्च। ठीक है, और अब उसमें अब ये जारी बात है कि जहन में क्वेश्चन आता है कि पाकिस्तान में क्या अपॉर्चुनिटीज है। तो पाकिस्तान में बेसिक रिसर्च की भी बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल है। सॉरी, एनिमल बेस्ड जो है तकरीबन हर अच्छे इंस्टीट्यूट में, या हर इंस्टीट्यूट ही अच्छा है जो कि फॉर्म डी का प्रोग्राम ऑफर कर रहा है, जो कि HEC रिकग्नाइज है ना, या जिसको फार्मेसी काउंसिल ऑफ पाकिस्तान ने रिकग्नाइज किया हुआ है। दैट इज द डेफिनेशन ऑफ अच्छा इंस्टीट्यूट। ठीक है, उन्होंने कुछ उनकी क्राइटेरिया होता है, उसको देख के ही वो अप्रूव करते हैं। तो हर उस इदारे में आप देखेंगे एनिमल बेस्ड रिसर्च हो रही है, तो दैट इज योर बेसिक रिसर्च। तो ये रिसर्च आप लोगों के लिए अवेलेबल है। ठीक है, अच्छा, अब आप कहेंगे व्हाट अबाउट क्लिनिकल रिसर्च। तो क्लिनिकल रिसर्च थोड़ी सी हार्ड है, वो हर इंस्टीट्यूट में आप लोगों के लिए अवेलेबल नहीं है। ठीक है, तो अगर आप अपना माइंड बना रहे हैं कि हम इस वेबिनार के बाद रिसर्च में जाएंगे, तो आप लोगों के चांसेस टू एंटर इनटू द रेल्म ऑफ रिसर्च आर मोर इन बेसिक रिसर्च, नॉट इन द क्लिनिकल साइड। क्लिनिकल साइड पे थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन एक सूरत में हो सकता है कि जैसे अभी कोविड पेंडेमिक जब शुरू हुआ था ना मार्च 2020 में, उसका मतलब ज्यादा होना शुरू हुआ था फरवरी के एंड में, तो कई ऐसे फार्मासिस्ट थे स्टूडेंट्स, उन्होंने क्या वॉलंटियर किया। अब जब उन्होंने वॉलंटियर किया, तो मेरी एक बहुत अच्छी स्टूडेंट है, उन्होंने वॉलंटियर किया था ये एक्सपो सेंटर में। तो एक्सपो सेंटर में तो वो क्या है कि जो पेशेंट्स है ना, डायरेक्ट आप उसमें इन्वॉल्व हो गए। अब जो लोग पेपर्स पब्लिश करेंगे बेस्ड ऑन योर कंट्रीब्यूशन, यू कैन गेट योर नेम इन द एब्स्ट्रैक्ट और द पेपर। और मैंने गुफ्तगू के स्टार्ट में कहा था कि जब तक के आपका नाम किसी एब्स्ट्रैक्ट या पब्लिश्ड पेपर में नहीं आता, उस वक्त तक आपके पास एविडेंस नहीं है कि आपने रिसर्च की है। आपको खुद सब्जेक्टिव आपका एक्सपीरियंस है कि आपने फलानी लैब में काम किया था, लेकिन दुनिया को दिखाने के लिए एब्स्ट्रैक्ट आपको देना पड़ेगा। तो अगर आप वॉलंटियर करते हैं, किसी लैब में इन्वॉल्व होते हैं, या जैसे कोरोना ने हिट किया था तो जिन लोगों ने वॉलंटियर किया था, तो दोज फार्मेसी स्टूडेंट्स, दोज अंडर ग्रेजुएट्स, दे कैन इनटू क्लिनिकल रिसर्च। ठीक है, तो अब रिसर्च की हेडिंग में मैंने क्या बात की, मैंने बताया व्हाट इट इज। तो उसकी शॉर्ट समरी मैंने आपको बताई, न्यू नॉलेज क्रिएशन, या उसको आप ये कह सकते हैं कि न्यू नॉलेज जिसमें लोग इंटरेस्टेड भी हो। ठीक है, जस्ट इंटेलेक्चुअल क्यूरियोसिटी हो सकती है। फिर मैंने आपको डिफरेंट टाइप्स बताई कि आपकी ऐसी बात जो कि ह्यूमंस पे डायरेक्ट अप्लाई होती है,
क्योंकि आपने रिसर्च डायरेक्ट ह्यूमंस पे की, ठीक है, तो उसको कहते हैं क्लिनिकल या ट्रांसलेशनल रिसर्च। और दूसरी जो एनिमल्स पे आप कर रहे हैं कि वो इम्प्लिसिटली इनडायरेक्टली अप्लाई होती है, या आपने नेचर की किसी चीज को एक्सप्लोर किया, जैसे आइंस्टाइन की एग्जांपल दी मैंने, E = mc², तो नेचर को आपने एक्सप्लोर किया, आपको इससे कंसर्न नहीं है कि यार इसके यूजेस क्या होंगे। जैसे कि मुझे मौका मिला था, जैसे मेरे इंट्रोडक्शन में इन्होंने बताया कि मुझे 2 साल मौका मिला, मैंने यूनिवर्सिटी ऑफ अलाबामा एट बर्मिंघम में काम किया। मैंने किस पे काम किया? सी एलिगेंस पे। तो हम एक प्रोटीन पे काम करते थे, मेजर स्पर्म प्रोटीन, ठीक है। अब मेरी तो पीएचडी न्यूरोफार्माकोलॉजी में है, तो मैं जब ऑप्शन भी देता था ना अपने भाग के सुपरवाइजर को, तो वो मैं जब उसको ये कहता था कि इस पे फलानी ड्रग चेक कर ले, तो वो कहता नहीं, आई एम अ बेसिक साइंटिस्ट, मुझे जस्ट इस प्रोटीन की फंक्शनिंग में है। अब ये एक अलग बात है कि ये प्रोटीन जो है इसके यूजेस का पता चलेगा तो हम एक खास डिजीज को ठीक करेंगे, ठीक है, वो एक अलग बात है। लेकिन आई एम नॉट बॉदर्ड बाय दैट, आप ठीक करें ना करें, आई एम जस्ट इंटरेस्टेड इन दिस प्रोटीन। तो दिस टाइप ऑफ रिसर्च इज कॉल्ड बेसिक रिसर्च, ठीक है। और बेसिक रिसर्च जो टाइप्स ऑफ रिसर्च पाकिस्तान में अवेलेबल है, अमूमन आपको एनिमल बेस्ड रिसर्च में काम करने का मौका मिल सकता है, ठीक है। एक और स्टाइल भी है जो कि मैं आपको थोड़ी देर में बताऊंगा, लेकिन सबसे पहले इस रिसर्च की हेडिंग को मैं कैप्चर कर लूं। तो अब तक किसी के कोई क्वेश्चंस हो तो आप लोग YouTube लाइव स्ट्रीम पे भी कर सकते हैं और उस पे भी। अच्छा, ये अभी एक मॉडरेटर्स की भी मुझे हेल्प चाहिए होगी कि कोई क्वेश्चंस अगर वो सिलेक्टिव चाहिए, क्योंकि बहुत सारे हैं। चलो मैं किसी हद तक करता हूँ, बाद में आपको मौका मिलेगा क्वेश्चन एंड आंसर का। अच्छा, एक क्वेश्चन किया गया है, सर अगर हम रिसर्च करना चाह रहे हैं तो करें कैसे और रिसोर्सेज क्या होंगे, ठीक है। तो इसके लिए वेट करें, ये मेरी टॉक का 3rd पोर्शन है। मैं आपको कुछ ऐसी चीजें बताऊंगा जो कि डायरेक्ट गूगल सर्च में आपको नहीं मिलेंगी और जो है यूट्यूब पे डायरेक्ट नहीं मिलेंगी, ठीक है। क्योंकि आप आज बैठे हैं ना, आप आज बैठे इसलिए है कि आपको वो बातें पता चले कि जो कि जस्ट गूगल सर्च से ना पता चले, जो कि डायरेक्ट यूट्यूब से ना पता चले। वरना मैं आपसे कहूँ ये रहा लिंक, आप जाके शेयर करें, ठीक है। तो ये जो ऑर्गेनाइजर्स का मकसद भी यही था कि हम 1-to-1 ज्यादा एंगेज हो। Is there any opportunity for undergraduates to research? What are available resources? अच्छा ठीक है, मैं आपको 1-2 एग्जांपल्स दूंगा, मैं आपको लाइव एग्जांपल्स दूंगा कि ये रही आपकी रिसर्च, ठीक है। और मैं आपके सामने एक क्लेम और भी करूंगा कि आप में से हर अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट रिसर्च क्वेश्चन बना सकता है इस तरह, इतने ज्यादा आप बना सकते हैं कि जिसकी हद नहीं। जस्ट आपने क्या करना है, ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स बैठे और जो भी आप क्वेश्चंस बनाए ना उसकी स्पेसिफिक करें। जैसे कि मैं आपको चाय की एग्जांपल, ये को मैं पहले से सोच के नहीं बैठा, इधर बैठे बैठे मेरे जहन में आया। तो मैंने स्पेसिफिक कैसे किया कि जो वेबिनार में जो प्रेजेंटर्स होते हैं वो जो चाय या कॉफी पीते हैं उनके कप डार्क कलर के होते हैं। अब आप डार्क को ज्यादा स्पेसिफाई कर सकते हैं, ब्राउन कर सकते हैं, या आप ये कर सकते हैं कि जो मेल होते हैं वो डार्क कलर के कप उठाते हैं, उसमें उनके ड्रिंक्स होते हैं, और जो फीमेल होते हैं उनके डिफरेंट होते हैं। फिर आपको लिटरेचर सर्च करनी पड़ेगी कि इसकी साइकोलॉजिकल इंप्लीकेशंस क्या है। आप कलर परसेप्शन से रिलेटेड मेन का भी स्टडी करेंगे, वुमेन का भी स्टडी करेंगे, तो रिसर्च क्वेश्चन आप बना सकते हैं। और आज मैं आपको एक बड़े मजे की एग्जांपल दूंगा, जो मैं अब जब ये टॉक प्रिपेयर कर रहा था ना, प्रिपेयर मैं कर रहा था अपने माइंड में, तो एक बड़ी जबरदस्त एग्जांपल मेरे हाथ आई, वो मैं आपको दिखाऊंगा। आप कहेंगे कि सर ये तो हम घर में बैठे कर सकते हैं। और आज की इस सेमिनार के बाद, इस वेबिनार के बाद मेरी कोशिश होगी कि आप घर बैठे रिसर्च करें, ठीक है। अपने लैपटॉप पे बैठ जाएं और आप पब्लिशेबल रिसर्च भी कर सकते हैं, ठीक है। कुछ चीजें होंगी जिनका मैं आपको बताऊंगा कि उनका आपने ख्याल रखना है। देन यू कैन परफॉर्म दिस पब्लिशेबल रिसर्च ऑन योर लैपटॉप एंड एथिकल, झूठ नहीं, ठीक है। हर एक चीज का आपके पास एविडेंस होना चाहिए, ठीक है। क्योंकि कई दफा ये भी टेम्पटेशन होती है, यार उसको देखो उसने इतने पेपर पब्लिश किए। नहीं, आप एक पेपर पब्लिश करें लेकिन आपका जमीर साफ हो, फिर आप धड़ल्ले से उसको डिफेंड करेंगे। क्योंकि जब आप रातें जागे होंगे ना, फिर आपसे कोई भी ग्राफ का पूछेंगे, आप कहेंगे यार इस ग्राफ में मैंने ये किया था, ठीक है। तो आपको मजा आएगा। और रिसर्च स्टार्ट कैसे करेंगे ये भी मैं आपको अभी बताता हूँ, ठीक है। हेल्प मी आउट हाउ टू स्टार्ट रिसर्च। तो चलो अभी हम मेरा ख्याल है कि नाउ इज द टाइम टू गो फॉर द 3rd पोर्शन। तो मेरा जो मेरी हेडिंग मैंने लिखी है वो है रिसर्च फॉर अंडर ग्रेजुएट्स। कि सर हम कन्विंस हो गए, वाई आपने बता दिया, कन्विंस हो गए, फाइन, आपने बता दिया रिसर्च पे न्यू नॉलेज क्रिएट होता है, ठीक है।
सर अब हम रेडी हैं। अब सर हमें बताएं कि अंडर ग्रेजुएट जो फॉर्म डी है खासतौर पे, जो कि मैं समझ रहा हूँ, वो कब वो करे। तो उसमें सबसे पहली बात जो मैं करना चाहूंगा वो ये है कि व्हेन टू डू रिसर्च। ठीक है, व्हेन टू डू रिसर्च, पहले इसको तो करे ना। अभी कुछ लोग सेमेस्टर ब्रेक से आए हैं, वो कहते हैं सर हमारे पास तो ये 2 वीक्स है, तो इज इट इनफ? तो मैं उसका आंसर ये करूंगा कि रिसर्च जो है ना, ये एक लाइफस्टाइल का नाम है। जब तक आप फॉर्म डी क्लियर नहीं कह रहे थे ना, तो आज ही से शुरू करें। अब आप कहेंगे आज ही से शुरू करें, तो उसका मैं आपको आंसर ये दूंगा कि आप इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस ढूंढना शुरू करें। हर दिन में 1 आवर आप दें कि आपने रीडिंग करनी है बस, और इंटरेस्टिंग जो भी आपको चीज लगती है। ठीक है, कि जैसे भाई लोगों का दिन के टाइम पे मूड भी बेहतर होता है, अब इसको भी रिसर्च क्वेश्चन में आप कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, आप कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं? आप सर्वेस कर सकते हैं, आप क्वेश्चनेयर कर सकते हैं। तो मैं कुछ आपको प्रैक्टिकल एग्जांपल्स दूं। ठीक है, तो परफेक्ट टाइम टू डू रिसर्च क्या है? परफेक्ट टाइम है एवरी डे। आप हर दिन कर सकते हैं। बस आपने करना क्या है, कोई भी अपनी मर्जी का टॉपिक उठाएं जिसमें आपका इंटरेस्ट हो। आपको स्टेम सेल में इंटरेस्ट है, फाइन, आप क्या करना शुरू करें, स्टेम सेल्स पे आपकी आदत हो कि गूगल स्कॉलर पे, ठीक है, या गूगल पे या पबमेड पे कुछ ना कुछ आप उसके बारे में रीड करते रहे। स्टार्ट विद द रिव्यू आर्टिकल्स, वहां से आप स्टार्ट करें। तो अभी तक मैंने क्या बात की अंडर द हेडिंग ऑफ रिसर्च फॉर अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट? अभी तक मैंने आपको यह बताया टाइम कौन सा बेहतर है। ठीक है, जब तक ये क्लियर नहीं है ना, उस वक्त तक कुछ भी क्लियर नहीं होगा। वरना आप कहेंगे कि टाइम, अच्छा मेरे पास 15 दिन है, चलो भाई फटाफट फटाफट हाथ आपने वो किए और कहा नहीं मैं 15 दिन तक बस मैं रिसर्च करूंगी और उसके बाद जो है मेरी क्लासेस शुरू हो गई, रिसर्च गॉन। नहीं नहीं, रिसर्च आपके साथ साथ चलती है। तो इफ यू गिव ओनली 1 आवर एवरी डे, और आप सेकेंड ईयर की स्टूडेंट है, थर्ड ईयर की है, फोर्थ ईयर की है, फिफ्थ ईयर स्टार्ट किया है, इस पूरे 1 साल में आपका एटलीस्ट एक एब्स्ट्रैक्ट, ये मेरा आपसे प्रॉमिस है। ठीक है, कुछ आपको डायरेक्शन दी जाए तो आपका आ सकता है। ठीक है, और आज हम बैठे ही इसलिए हैं क्योंकि मैंने पहला रीजन दिया था ना कि व्हाई यू शुड डू रिसर्च या व्हाई रिसर्च इज इंपॉर्टेंट फॉर यू इवन इफ यू आर नॉट इनटू रिसर्च। आपने फार्मेसी की फील्ड में जाना है, आपने किसी और जगह का लाइसेंस लेके दुबई में ह्यूमैनिटी को सर्व करना है, कुछ भी करना है। मैंने कहा था ये आपके लिए भी है, मैंने उसका रेफरेंस दिया था, मैंने उसका जो रैशनल दिया था, दैट वाज बिल्डिंग योर सीवी। तो आपकी सीवी में चीज आ जाएगी। ठीक है, अब हम आते हैं की क्वेश्चन की तरफ, जो कि जो है चैट सेक्शन में मुझे नजर आया। अभी मैंने यूट्यूब का चेक नहीं किया कि यूट्यूब पे क्या क्वेश्चन है। व्हाट काइंड ऑफ रिसर्च? ठीक है, व्हाट काइंड ऑफ रिसर्च? तो व्हाट काइंड ऑफ रिसर्च, आप इस वक्त अपने लैपटॉप पे बैठ के सर्वे बेस्ड रिसर्च आप कर सकते हैं। सर्वे बेस्ड रिसर्च किसी क्वेश्चन को भी आप बना सकते हैं और उसकी बेसिस पे आप सर्वे कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन आपको मेंटोर की जरूरत होगी। तो मेरा ख्याल है कि मेंटोर, मैं इसके बाद बात करूंगा कि मेंटोर की कितनी इंपॉर्टेंस है। सिर्फ एक वेबिनार की बेसिस पे आप रेडी तो हो सकते हैं, दैट्स आल्सो फाइन, लेकिन पब्लिशेबल बनाने के लिए आपको कोई ना कोई मेंटोर किसी न किसी की छतरी के अंदर आना पड़ेगा आपको। ये आपकी मजबूरी है। अच्छा, वजह क्या है? आप कहें नहीं हम तो खुद सब कुछ कर लेंगे। हो सकता है आप कर लें, दैट्स एब्सोल्युटली राइट, मैं इनकार नहीं कर रहा, क्योंकि अब तो हर एक चीज अवेलेबल है। खान एकेडमी पे फिजियोलॉजी के और बहुत सारी चीजों के वो लेक्चर्स अवेलेबल हैं जिसके लिए जो पिछली जनरेशन थी वो तरस जाती थी कि कोई हमें इस तरह एक्सप्लेन करे। तो एवरीथिंग इज अवेलेबल, तो आई कैन ऑल्सो डू इट, फाइन। लेकिन जब आप पब्लिश करने जाएंगे या कोई एब्स्ट्रैक्ट जब आप सबमिट करेंगे ना, तो वो जो एजेंसी है जो एक्सेप्ट करती है, वो कुछ ऐसी चीजें देख लेगी, वो उनको पता चल जाएगा कि यार इसकी किसी ने मेंटोरशिप नहीं की। आपकी रिसर्च अच्छी होगी लेकिन फिर भी वो पब्लिशेबल नहीं बनेगी। ठीक है, तो अभी तक मैंने क्या बात की? अभी तक मैंने ये बात की कि यू कैन डू सर्वे बेस्ड रिसर्च, कि आप लोगों के सर्वे करें। यू कैन ऑल्सो डू रिसर्च बेस्ड ऑन गूगल स्कॉलर ओनली। आपको सर्वे कुछ नहीं करना, जो ऑलरेडी डाटा अवेलेबल है उसी ही की छांटी करनी है। लेकिन इस सारी चीजों के लिए आपने मेंटोरशिप की बहुत इंपॉर्टेंस है। तो मेंटोरशिप में थोड़ा बहुत आपको बाद में एक्सप्लेन करता हूं, ठीक है, बल्कि अभी बताता हूं। अब कोई नाइव बंदा आया, आप अभी आप मेरी गुफ्तगू से ज्यादा पंप हो गए और आपने कहा कि नहीं नहीं हम करेंगे रिसर्च। ठीक है, आपने कोई भी क्वेश्चन बना दिया, फॉर एग्जाम्पल के कराची में
कराची में 70% लोग जो है वो अपने घरों में इस टेम्परेचर पे पंखे चलाते हैं, एसी नहीं चलाते। ठीक है, अब अगर सर्वे बेस्ड करना है तो आपको एक एरिया सिलेक्ट करना होगा, पूरे कराची का आप नहीं कर सकते। कहां जाएंगे? आपको कराची साउथ, कराची ईस्ट इस तरह डिफाइन करना पड़ेगा। यू नीड टू बी स्पेसिफिक। फिर आपको कौन घरों में जाके नॉक करेगा और उनसे फॉर्म फिल करवाएगा? लोग अगर नहीं करेंगे, है ना, तो इससे आपको पता चला आपकी टारगेट ऑडियंस वो हो ही नहीं सकती कि आप पैदल जाएं इस गर्मी में और करें। अच्छा, फिर इससे आपको पता चला कि नहीं यार, मैं तो ऑनलाइन फॉर्म फिल करवाऊंगी, गूगल फॉर्म्स। तो फिर क्या आपके पास ईमेल का डाटा है जिस इलाके का आप करने वाली है एनालिसिस? अच्छा, फिर आपको ये होगा कि नहीं 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 यार, ये तो मुश्किल है, क्यों ना मैं अपनी क्लास फेलोज का ये कर लूं। तो अब इसमें आपको ये करना होगा, क्लास फेलोज को गूगल फॉर्म में फिल करवाएं उनसे कि भाई पंखे चलते हैं, आपने एसी चलाना शुरू किया या नहीं किया। एक आपने सर्वे इस वक्त फिल कराया, फिर जब टेम्परेचर 10 डिग्री और बढ़ जाएगा, फिर जिन जिन लोगों के घर में एसी है, क्वेश्चन होगा यस नो की फॉर्म में कि एसी चलाना शुरू किया या नहीं किया, तो उन्होंने बताया यस। तो फिर इस तरीके से आपने एक कंक्लूजन निकाला कि इस टेम्परेचर पे लोग महंगाई की वजह से जो है अभी एसी नहीं चला रहे, लेकिन जैसे ही टेम्परेचर इस डिग्री पे आता है तो अब एसी चलना शुरू होता है। अब आप कहेंगे कि सर ये तो बड़ी बेकार सी चीज है, एंड आई वुड से नो। आप जब इस एब्स्ट्रैक्ट को पब्लिश करेंगे तो कंपनीज विल बी इंटरेस्टेड इन दैट। कंपनीज फिर उस हिसाब से अपनी सेल का बनाएंगी प्लान। कंपनीज इस हिसाब से बनाएंगी, हमने इतने एसीज मैन्युफैक्चर करने, हमने इतने एसीज इंपोर्ट करने। हालांकि ये क्वेश्चन तो सिंपल था, लेकिन इसकी जो टारगेट मार्केट है, द पीपल हु आर इंटरेस्टेड इन इट, वो पूरी एसी मैन्युफैक्चरिंग इदारा होगा। फैन वाले भी होंगे कि अब हमारे फैन नहीं चलते, जिन लोगों ने एसी लगाया हुआ है वो इतने घंटे एसी चलाते हैं। आपकी इस रिसर्च में गवर्नमेंट इंटरेस्टेड होगी कि भाई जब इतनी कंजम्पशन होगी तो इतने हिसाब से हमें टैक्स की वसूली होगी। ठीक है, तो एवरी क्वेश्चन जो कि वर्थ आस्किंग हो, उसकी कोई ना कोई टारगेट मार्केट कहीं ना कहीं मिल सकती है। ये क्यूरियोसिटी क्यों ना हो, दैट कैन बी योर रिसर्च। ठीक है, अभी जैसे मैंने फिक्शन बुक क्लब का नाम लिया, तो एज ए न्यू ईयर रेजोल्यूशन मैंने बहुत सारे स्टूडेंट से कहा कि आप फॉर्म फिल करें। गूगल फॉर्म्स पे मैंने फॉर्म बना लिया, और वो जस्ट ये था कि आप न्यू ईयर रेजोल्यूशन में कोई 5 बुक्स बताएं जो आप पढ़ेंगे। ठीक है, ये मेरा क्वेश्चन था, 5 बुक्स के नाम लिखें। इसमें मैंने कोई अच्छा बुरा नहीं किया, मैंने जस्ट ये कहा मुझे 5 बुक्स आप बताएं जो आप पढ़ेंगे। तो अब मुझे ये बताएं, सबसे पहले तो मुझे ये बताएं, ये जो मैं क्वेश्चन कर रहा हूं, एक न्यू नॉलेज क्रिएट होगा ना कि फार्मेसी के स्टूडेंट से मैंने पूछा था, फार्मेसी के स्टूडेंट्स जो भी स्टूडेंट्स हैं वो रिसर्च करेंगे और मुझे 5 बुक्स के नाम बताएंगे। तो मेरा क्वेश्चन ये है कि क्या ये क्वालिटेटिव मेरा क्वेश्चन था, क्वालिटेटिव रिसर्च में कर रहा था या क्वांटिटेटिव कर रहा था? चले शाबाश, मुझे बताएं कि आप जाग भी रहे हैं या नहीं। मुझे इसका आंसर दें, चैट में लिखें कि ये मैं क्वालिटेटिव। हाय आप तो अनम्यूट कर दिया ना, अनम्यूट ना करें। हाँ, क्वालिटेटिव, क्योंकि उसमें अच्छा बुरा नहीं है, कोई हायरार्की नहीं है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे जस्ट आपने वो बताना है। फर्क तो खैर पड़ता है क्योंकि वो जो लिस्ट है ना, वो लिस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कि ये हो गया क्वालिटेटिव रिसर्च। ठीक है, आप ओपन एंडेड है, 5 बुक्स कोई भी लिखें। ठीक है, तो 5 बुक्स मुझे पता थे, दैट वाज क्वालिटेटिव रिसर्च। और ये मैंने कैसे किया? चुटकी में। तो आप इस वक्त क्वालिटेटिव कर सकते हैं। आप इस वक्त गूगल फॉर्म्स में जाएं, गूगल फॉर्म्स में सब कुछ गिवन है, ब्लैंक पे क्लिक करें, वो सब आपको फॉर्म दे देगा, उसमें से आप करें। ठीक हो गया, पहली बात मैंने ये की। लेकिन जब तक मेंटोरशिप नहीं होगी ना, आप एक की पॉइंट मिस कर जाएंगे। और वो की पॉइंट क्या है? की पॉइंट ये है कि व्हेनेवर यू आस्क अ क्वेश्चन, तो ऑलवेज गो विद वैलिडेटेड क्वेश्चन। अब आप कहेंगे वैलिडेटेड क्वेश्चन यार सर ये क्या बात आप बीच में लेके आए? तो उसमें मेरा आंसर ये होगा कि जैसे अभी मैंने एक रिसर्च है, 2nd इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस थी PNDS की, पाकिस्तान न्यूट्रिशन एंड डायटेटिक सोसाइटी, उन्होंने मेरा एब्स्ट्रैक्ट एक्सेप्ट किया। मैं था और मेरे साथ 2 और ऑथर्स थे। वो सर्वे बेस्ड था। ठीक है, उसमें स्टूडेंट से क्वेश्चनेयर कराए थे। एक्सेप्ट क्यों हुआ था? एक्सेप्ट इसलिए हुआ था कि उसमें जो भी क्वेश्चन हमने किए थे ना, दे वर ऑल वैलिडेटेड। अब आप कहेंगे वैलिडेटेड सर ये तो बताए वैलिडेटेड है क्या चीज? तो वैलिडेटेड तो पहले समझे। अब देखें, उसमें हमने स्लीप रिलेटेड क्वेश्चन किया। ठीक है, अब स्लीप रिलेटेड क्वेश्चन तो आपके जहन में भी आ सकता है, भाई आप 6 घंटे सोते हैं, आप 8 घंटे सोते हैं।
अच्छा भाई, आप रात को 9 बजे सोते हैं, 12 बजे सोते हैं? देखिए, हर तरह का क्वेश्चन तो कोई भी आप हो सकता है। वैलिडेटेड क्वेश्चन वो होता है कि रिसर्चर, जो कि स्लीप के रिसर्चर होंगे, जिन्होंने इस पे डेकेड्स गुजारे होंगे, वो ये आपको बताएंगे कि आप इस वर्डिंग में क्वेश्चन करेंगे ना, तब हम इस क्वेश्चन को वैलिड क्वेश्चन मानेंगे। ठीक है, ये मैंने आपको सिंप्लीफाइड वर्ड में बताया वैलिडेटेड का क्या मतलब है। ठीक है, वैलिडेटेड का ये मतलब है कि आपका जो क्वेश्चन है उसकी वर्डिंग, उसकी जो टाइम ड्यूरेशन दे रहे हैं आप सोने की या किसी भी चीज की, उसके कौन सा ऑब्जेक्टिव पहले रखा, सब्जेक्टिव बाद में रखा, एक एक चीज, उस वैलिडेटेड क्वेश्चन को आप छेड़ते नहीं है, वो एज इट इज इसी तरह किया जाता है, उसको मॉडिफाई नहीं किया जाता। अब मैं आपको इसकी एग्जांपल देता हूं और आपको बताता हूं कि हाँ, उसको मॉडिफाई भी किया जा सकता है। AKU में, आगा खान यूनिवर्सिटी में, मैं 9 साल आगा खान से मेरा ताल्लुक रहा AKU में। ठीक है, मैं वहां पे पार्ट टाइम PhD भी कर रहा था और फुल टाइम एम्प्लॉय था। तो वहां की एक रिसर्चर थी, वो हमें एक कोर्स कराया गया था, क्वालिटेटिव रिसर्च पे हमें कोर्स कराया गया था। ये चूंकि मैं PhD स्टूडेंट भी AKU का था ना, तो उसमें हमें क्वालिटेटिव रिसर्च वाइज भी कराया गया था, तो कोर्स वर्क था। उसमें एक खातून थी, उन्होंने रिसर्च की थी कि डोमेस्टिक अब्यूज इन कराची या इन पाकिस्तान। ठीक है, डोमेस्टिक अब्यूज, घरों में अब्यूज, यानी कि खासतौर पे उनकी रिसर्च थी कि मियाँ बीवी जो है उनके दरमियान किस तरह अब्यूज किस तरह होता है। ठीक है, ध्यान में रखें। अब रिसर्च क्वेश्चन क्या है कि डोमेस्टिक अब्यूज पाकिस्तान में कितना होता है। अब उन खातून ने क्या किया कि उन्होंने एक वैलिडेटेड क्वेश्चनएयर उठाया, लेकिन वो जो वैलिडेटेड क्वेश्चनएयर था ना, वो स्वीडन के रिसर्चर्स का था, स्वीडिश, वो था स्कैंडिनेवियन कंट्रीज, वहां पे, ठीक है, वहां के कल्चर और उस बेसिस पे था। उन्होंने एज इट इज उठा के घरेलू खवातीन से फिल कराना शुरू कर दिया। ठीक हो गया। उनका कंक्लूजन पता है क्या आया? उनका कंक्लूजन आया कि आई बिलीव के मोर देन 95% घरों में डोमेस्टिक अब्यूज हो रहा है। अरे, मोर देन 95! वो तो फिर जब उन्होंने पब्लिश करने के लिए भेजा तो उनको एडिटर्स ने कहा, भैया स्वीडन में तो आप बेगम को थोड़ी सी ऊंची आवाज में बात करें, वो उसको भी अब्यूज कह देते हैं। ठीक है, रोटी पकाते हुए, अरे भाई क्या रोटी पका रही, उस तरह हल्का सा हाथ लग गया, वो उसको भी अब्यूज कर लेंगे। तो आप इसको पाकिस्तान पे ट्रांसलेट नहीं कर सकते। यू हैव टू मॉडिफाई इट अकॉर्डिंग टू योर ओन कल्चर, अकॉर्डिंग टू योर ओन प्रैक्टिसेस। अब मैं स्वीडन को ठीक नहीं कह रहा, ना मैं पाकिस्तान को भी ठीक कह रहा हूं, ठीक गलत की बात नहीं हो रही। बात यह हो रही है कि वो क्वेश्चन वैलिडेटेड तो है, लेकिन वो स्कैंडिनेवियन सर्कमस्टांसेस के लिए, वो आपके लिए नहीं है। तो फिर उस खातून ने उसको मॉडिफाई किया, उन्होंने फिर बताया कि मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ वैलिडेटेड क्वेश्चनएयर, और फिर वो अपने आप आर्टिकल में मेंशन करते हैं जब आप पब्लिश करते हैं कि ये मेरा क्वेश्चनएयर था, क्योंकि क्वेश्चन की वर्डिंग मैटर करती है। आप लोगों ने अगर लॉयर्स की मूवीज वगैरह देखी हो तो जज बार बार बीच में रोक देता है कि नहीं, लीडिंग क्वेश्चन नहीं करना, नहीं इस तरह का क्वेश्चन नहीं करना। ठीक है, वो क्यों करता है? क्योंकि क्वेश्चन की वर्डिंग मैटर करती है। ठीक है, क्वेश्चन की वर्डिंग मैटर करती है। जिस तरह की एग्जांपल दी जाती है कि लेट्स ईट बेबीज। अब लेट्स ईट बेबीज, लेट्स ईट कॉमा बेबीज, तो लेट्स ईट बेबीज, इसमें और उसमें फर्क क्या है? ठीक है, तो कॉमा कहां पे है, उसकी फ्रेज किस तरह किया गया, तो ईच एंड एवरीथिंग इज वैलिडेटेड, जो उस फील्ड के रिसर्चर होते हैं वो करते हैं। तो अब आपके जहन में एक क्वेश्चन आ सकता है, और कुछ चैट सेक्शन में मुझसे डायरेक्ट भी क्वेश्चन कर रहे हैं कि फिर हम क्या करें। तो फिर फॉर एग्जांपल आप स्लीप में इंटरेस्टेड है, फॉर एग्जांपल आप फिजिकल एक्टिविटी में इंटरेस्टेड है, फॉर एग्जांपल आप जिम गोइंग की हैबिट्स में इंटरेस्टेड है, ठीक है, और आप क्वेश्चनएयर देखना चाहते हैं, तो गूगल आपने क्या करना है, वैलिडेटेड क्वेश्चनएयर स्लीप, वैलिडेटेड क्वेश्चनएयर एक्सरसाइज, तो वो आपको ढेर सारी लिस्ट देगा। ठीक है, तो यू विल हैव टू रिलाई ऑन पब्लिश्ड पेपर्स। उस पब्लिश पेपर का कोई एक आप उठा सकते हैं, और फिर वो आपका रेफरेंस होगा कि भाई मैंने नया क्वेश्चनएयर नहीं डिजाइन किया, ये तो वैलिडेटेड क्वेश्चन। ठीक है, एंड वैलिडेटेड क्वेश्चन will ensure that your research can get published somewhere, या आपका एब्स्ट्रैक्ट एक्सेप्ट हो सके। ठीक है, तो अभी तक मैंने क्या बात की? मैंने अभी तक ये बात की कि आप अपने लैपटॉप पे बैठ के ये रिसर्च कर सकते हैं। ठीक है, अपनी क्यूरियोसिटी को भी फिल कर सकते हैं। अगर आप लोगों को कन्विंस कर सके कि भाई गूगल फॉर्म पे फिल कर दे, तो फिल कर देंगे। ठीक है, ये तो होगा गूगल फॉर्म पे, क्वालिटेटिव हो गया, जो कि मैंने एक किया था।
उसको वैलिडेटेड कैसे करना है कि वो पब्लिशेबल बन जाए, उसके लिए मैंने आपको ये बताया वैलिडेटेड क्वेश्चनियर आप उठाएंगे, अपनी मर्जी का नहीं उठाएंगे। जैसे मैंने कहा कि भाई अपनी 5 बुक्स आप मेंशन करें, नहीं, मैं क्या करूंगा, अगर मैं इसी ही को वैलिडेट करना चाह रहा हूं कि मैं कहीं पब्लिश कर सकूं, फिर मैं वैलिडेटेड क्वेश्चनियर रीडिंग हैबिट, वैलिडेटेड क्वेश्चनियर बुक्स, इस तरह करके मैं तुक्के लगाऊंगा, उसमें से कोई एक चीज आएगी। और इसीलिए यू नीड अ मेंटोर। वो मेंटोर आपको बताएगा किस तरीके से सर्च करेंगे। ठीक है, मेंटोर एक ग्रुप की फॉर्म में आप उसके पास क्वेश्चंस लेके आएंगे कि हमें ये चीज हमने की तो इसके बारे में हमें बताएं, तो मेंटोर साथ साथ आपके चलता है। ठीक है, इसीलिए पीएचडी जो है ना, पीएचडी का जो सुपरवाइजर होता है उसको कहा जाता है कि वो शारक की तरह है, वो बिल्कुल आपके साथ ना बिल्कुल अटैच होता है। ठीक है, आप बहुत इन्वॉल्व होते हैं वो, क्योंकि आप उसी ही की छाव में काम करते हैं, और उसके साथ जब आपका लिंक होता है ना, तो फिर आपको आपके अंदर उसी ही के असरात भी नजर आने शुरू होते हैं। इट हैपन्स, योर कंपनी चेंजेस। ठीक है, तो मैंने आपको गूगल फॉर्म्स एक राह दिखाई कि आज इसी वेबिनार के एंड होने पे ही आप रिसर्च शुरू कर सकते हैं बेस्ड ऑन गूगल फॉर्म्स। ठीक है, आपका टारगेट क्या होगा, आपके अपने क्लास फेलो से चीजें सॉल्व कराना आसान होगा। फिर उसकी वर्थ बनाने के लिए आपको क्या करना होगा, उसकी वर्थ बढ़ाने के लिए आपको वैलिडेटेड क्वेश्चन उठाने होंगे। ठीक है, जो कि पुराने रिसर्चर्स ने वैलिडेट किए हुए। तो ये मैंने आपको एग्जांपल दी कि अपने लैपटॉप पे बैठे हुए आप कैसे रिसर्च कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा, उसमें अब तो ये तो गूगल फॉर्म था। अब गूगल फॉर्म्स के सर्वे, ये तो सर्वे बेस्ड था ना, आपने क्लास फेलोज को इन्वॉल्व किया, लेकिन आप लैपटॉप पे बैठे हो, आप कहते हैं नहीं यार मेरा किसी से कोई लेना देना नहीं है, गोली मारो यार और चीजों को छोड़ दो, मैंने बस अपनी रिसर्च करनी है, मेरा किसी से कोई लेना देना नहीं। इवन देन आई वुड आस्क यू टू हैव अ मेंटोर। कोई एक मेंटोर रखे जो कि आपको बताए, ठीक है, कि पबमेड पे कैसे रिसर्च करनी है, या कोई भी डेटाबेस कैसे उठाना है, या किस इंफॉर्मेशन के लिए किस तरह का डेटाबेस आप उठाएंगे। ठीक है, तो मैं जब ड्रग लिटरेचर का टॉपिक पढ़ाता हूं अपने स्टूडेंट्स को, तो उसमें मैं उनकी हैंड्स ऑन एक वर्कशॉप कराता हूं। वो मेरा लेक्चर जो है इट्स लाइक ए हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस। तो मैं उनको बताता जाता हूं कि आप पबमेड पे जाएं और पबमेड पे फलाने वर्ड्स लिखे, कितने रिजल्ट्स आए, अच्छा अब ये वर्ड लिखे, कितने रिजल्ट्स आए, और फिर मैं उनको बूलियन की इंपॉर्टेंस बताता हूँ कि एंड और इन वर्ड्स को कैसे यूज करना है। तो ऑल यू नीड इज अ मेंटोर। तो वो मेंटोर आपको बताएगा कि या तो आप सर्वे बेस्ड रिसर्च करें, उसके क्वेश्चंस किस तरह के रखें कि इट बिकम्स अ रिसर्च क्वेश्चन। ठीक है, या फिर आप कहते हैं मैं अपने लैपटॉप पे करूंगी, मुझे कोई लेना देना नहीं है, मैंने किसी से इंटरेक्ट नहीं करना, फाइन, यू कैन स्टिल गेट योर रिसर्च एक्सेप्टेड। ठीक है, अब मैं आपको एक एग्जांपल देने वाला हूं, ये आज ही मैंने देखी, एक सेकंड मैं स्क्रीन शेयर कर लूं, मैं आपके सामने वो एग्जांपल रखता हूं। अब आप देखिए, ये रिसर्च तो आप घर बैठे कर सकते हैं। एक सेकंड, लेट मी चेक, है ना, मुझे पहले से इसको देख के रख लेना चाहिए था, सॉरी फॉर दैट। आई बिलीव के हाँ, अब मुझे मिल गई, मैं अभी शेयर कर रहा हूँ स्क्रीन। देखिएगा, बड़े मजे की रिसर्च है, और मेरा दावा है कि भाई आप भी कर सकते हैं ये रिसर्च। ठीक है, और आप अभी बैठे बैठे ये रिसर्च कर सकते हैं। आप कहेंगे कि ओहो ये आइडिया हमें क्यों नहीं आया जहन में। तो ये रिसर्च की गई है, रिसर्च का टाइटल देखें, टॉप 100 सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स इन न्यूरोसर्जरी ऑन ट्विटर। जो ताइकून थे न्यूरोसर्जरी के, उनका सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स उनके देखा गया, भाई उनके कितने जो है ना, कितने लोग उनको फॉलो करते हैं, और वो अपनी फील्ड के बड़े थे। अब मैं आपको बताऊं उन्होंने क्या किया है, उन्होंने जस्ट ये पबमेड या उसमें जाके, और ये लोग इसी फील्ड के ही है, तो उन्होंने देखा न्यूरो सर्जरी में कौन कौन से लोग आगे हैं, और उसको कैसे डिफाइन किया, एच इंडेक्स। जिस तरह के आप पेपर पब्लिश करते हैं, तो किसी भी आर्टिकल का, किसी भी पेपर का इम्पैक्ट फैक्टर होता है ना, तो इसी तरह रिसर्चर का कि कितने पेपर पब्लिश करता है, कितने हाई इम्पैक्ट फैक्टर में आते हैं, कितना ये एंगेज है, तो उसके लिए एच इंडेक्स यूज होता है। तो एच इंडेक्स किसी का 20 होना बहुत अच्छा होता है, 20 है, 30 है, 50, 60 जो है वो एक्सेप्शनल होता है। तो उन्होंने क्या किया, एच इंडेक्स से ना लोगों को क्लासिफाई किया, और फिर उनका सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स, तो उसमें ट्विटर को उन्होंने देख लिया कि ट्विटर पे कैसे कर रहे हैं। तो ये रिसर्च तो आप भी कर सकते हैं।
आप कैसे करेंगे ये रिसर्च? आप करेंगे फॉर एग्जाम्पल इफ आई एम इंटरेस्टेड इन, अब मैं क्या कहूंगा, मेमोरी बेस्ड रिसर्च में करना चाह रहा हूं अल्जाइमर पे, ठीक हो गया। अब मैं जाऊंगा पबमेड पे और उस पर अल्जाइमर टाइप करूंगा, तो उसमें से कुछ नाम मुझे पहली दूसरी तीसरी लिस्ट में ज्यादा मिलने शुरू हो जाएंगे, ठीक है, मैं उन पे फोकस करूंगा और वो जो पेपर्स पब्लिश कर रहे हैं उनमें नामों को देखूंगा। एक तरीका ये है। कॉरेस्पॉन्डिंग ऑथर को देखूंगा। कॉरेस्पॉन्डिंग ऑथर वो होता है जिसकी लैब होती है, जिसपे काम हो रहा होता है, जो कि मेन रिस्पॉन्सिबल होता है। इट इज नॉट द फर्स्ट ऑथर, कॉरेस्पॉन्डिंग ऑथर, ठीक है। अगर पेपर में कोई गलती निकल आई तो कॉरेस्पॉन्डिंग ऑथर इज रिस्पॉन्सिबल, वही फंडिंग लेके आता है। एक ये तरीका है। सेकेंड तरीका ये है कि एच इंडेक्स की मैं लिस्ट निकालू, एच इंडेक्स की, वो गूगल करने से कहीं ना कहीं आपको मिल जाएगी। बहुत सारे लोग इस तरह की लिस्ट पब्लिश करते हैं किसी भी स्पेसिफिक फील्ड की। जब मेरे पास एच इंडेक्स की लिस्ट निकल आई ना, फिर मैं कुछ स्टूडेंट को असाइन करूंगा कि आप इनके फेसबुक को जरा देखें कि फेसबुक पे इनके कितने फॉलोअर्स हैं, क्या है। एक एक्सेल शीट बनती चली जाएगी जिसमें ये नाम लिखते चले जाएंगे, और फिर जब मेरे पास पूरा डाटा आ जाएगा फिर उसको एनालाइज किया जा सकता है कि भाई इतना हमारा कट ऑफ है कि हमने जिनका एच इंडेक्स 40 से ऊपर था ना, सिर्फ उनको इंक्लूड किया, क्योंकि आपके पास तो 10,000 लोग आ जाएंगे, तो यू नीड अ कट ऑफ। तो इसलिए मैं कह रहा हूं ना कि आप अपनी रिसर्च को वैल्यूएबल कैसे बनाना है वो मेंटोर आपको बताएगा उस फील्ड का, और वो आपसे डिस्कशन करके इसको बनाएगा। तो ये देखिए, टॉप 100 सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स इन न्यूरोसर्जरी ऑन ट्विटर। तो आप इस तरह की रिसर्च क्यों नहीं कर सकते? आप भी कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन आप करेंगे मेंटोर की बेसिस पे। आपको मेंटोर बताएगा कि कैसे करना है। तो फंडामेंटल्स ऑफ रिसर्च इन अंडर ग्रेजुएट रिसर्च, इसकी जो अगर सीधा सीधा बातें की जाए, या मैं समराइज करूं अपनी सारी जो मैंने अब तक आपके सामने बातें की हैं। एक सेकंड, मैं शेयरिंग ऑफ करता हूं इसकी। शेयरिंग, हाँ स्टॉप शेयर, अच्छा हाँ ठीक है, अब हम वापस आ गए। तो अब तक मैंने फंडामेंटल्स ऑफ रिसर्च फॉर अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट, सबसे पहले मैंने आपको कन्विंस करने की कोशिश की व्हाई यू शुड बी कन्विंस्ड, ठीक है। आप उस वक्त नहीं करें कि यार यही एक ऑप्शन रह गया था, या चलो शादी नहीं हो रही थी, या चलो कोई जॉब नहीं मिल रही थी, चलो मीनवाइल, नहीं, ठीक है। तो पहला मैंने आपको बताया था कि बिल्डिंग सीवी, और टाइम को आप वेस्ट टाइम नहीं करें, और वे ऑफ लुकिंग एट थिंग्स, सोसाइटी बेहतर होगी। सेकंड, मैंने आपको रिसर्च हेडिंग मैंने लिखी हुई अपने पेपर पे। तो रिसर्च में मैंने आपसे कुछ बातें की थी जिसमें मैंने बताया था कि न्यू नॉलेज की क्रिएशन होती है, फिर डिफरेंट टाइप्स आपकी बताई, और पाकिस्तान में कौन कौन सी अवेलेबल है। पाकिस्तान में बेसिक या एनिमल बेस्ड अवेलेबल है, ठीक है। और फिर रिसर्च फॉर अंडर ग्रेजुएट में मैंने बताया कि परफेक्ट टाइम में मैंने आपको कन्विंस करने की कोशिश की कि परफेक्ट टाइम इज एवरी डे, बस आपका माइंडसेट होना चाहिए। और फिर टाइप्स ऑफ रिसर्च में मैंने आपके सामने सर्वे बेस्ड रखा, जिसमें आप अपने क्लास फेलोज को यूज कर सकते हैं। ये इजी है, क्योंकि जैसे मैंने डाउ में जब टीचिंग करता तो 100 की क्लास है, 100 की, और इवनिंग के भी यहाँ 50 स्टूडेंट्स हैं, तो 150 300 यहाँ से मिल सकते हैं, तो ये इजी हो जाएगा। सर्वे में 100 का फिगर होना इट्स गुड, 100 से कम पे आप जो है ज्यादा रिलाई नहीं कर सकते, 100 से ऊपर, ठीक है। फिर उसमें भी स्टैटिस्टिकल एनालिसिस है, उन पे हम नहीं जाते। और उसमें मैंने बताया कि सर्वे बेस्ड आप जरूर करें, गूगल फॉर्म्स कराएं, जो भी कराएं, उसमें गो विद अ वैलिडेटेड क्वेश्चन। और फिर उसके बाद पबमेड पे रिसर्च, कि मैं क्लास फेलोज को नहीं इन्वॉल्व करना चाह रही, मैं जस्ट खुद से लैपटॉप पे करूंगी। तो उसकी एग्जांपल भी मैंने आपके सामने रखी कि उन्होंने क्या किया, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स, उन्होंने उन जो रिसर्चर्स थे ना, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स, लाजमी नहीं उनसे कांटेक्ट किया, यू डोंट नीड टू कांटेक्ट, आपका अपना ट्विटर है, आप खुद देख लेते हैं कि भाई ये लोग हैं, इनका इतना हाई इंडेक्स है, और ये सोशल मीडिया पे भी बड़े एक्टिव रहते हैं, तो ये रिसर्च करने की चीज थी। तो मैंने आपको दोनों तरह की रिसर्च बताई, और फिर उसमें मैंने आपको बार बार जोर दिया वैल्यू ऑफ मेंटोरशिप। तो कोई एक आपका मेंटोर होना चाहिए जो कि बताएगा कि वर्थवाइल रिसर्च क्या है, और कौन सा क्वेश्चन है ऐसा है जो कि भाई अभी ये इतना वैल्यूएबल नहीं है। अच्छा, लेकिन मैं जो ये टर्म तो बोल रहा हूं कि इतना वैल्यूएबल नहीं है, लेकिन मैं अब डेविल्स एडवोकेट बन के आपको एक और रास्ता भी दिखा रहा हूं, ठीक है। और ये मेरा लास्ट पॉइंट है। और रास्ता मैं अपने स्टूडेंट से भी यही कहता हूं, whenever you want to make notes, तो उसके लिए मैं अभी चैट में लिख रहा हूं, चैट में मैं लिख रहा हूं medium.com, इसको एक्सप्लोर करना शुरू करें। आप जो क्लास नोट्स बनाते हैं ना, ये ब्लॉगिंग वेबसाइट है, कोई आपके आर्टिकल को जो है ना क्यूरेट नहीं कर रहा, कोई आपको देख नहीं रहा,
यानी कि जिनके पास आपका लिंक है वो तो इसको रीड करेंगे, लेकिन ये आपके अपने ऊपर है कि आप इसमें जो भी लिखना चाहें। तो आप अपने क्लास नोट्स बनाएं, जो भी चीज क्लास में रीड करें उस पर ब्लॉग बनाएं। जैसे कि अभी जो मैंने आपको एग्जांपल दी ना कि आप अपने न्यू ईयर रेजोल्यूशन क्या है 5 बुक्स अपनी बताएं, तो उसमें जो जो बुक ज्यादा आ रही है मैं उस पर ब्लॉग लिख सकता हूँ। तो जब आपके पास कोई पोस्टर नहीं है, कोई एब्स्ट्रैक्ट नहीं है, तो आज के वेबिनार के बाद आप medium.com पे अपने ब्लॉग्स बनाएं, उनको सीवी में लिखें, ताकि जब आप किसी एम्प्लॉयर के पास जाएं तो ठीक है मेरे पास कोई एब्स्ट्रैक्ट नहीं है, फाइन, मेरे पास कोई पेपर नहीं है पब्लिश, फाइन, लेकिन साइंटिफिक एस्पेक्ट पे मैंने ये देखिए ये ब्लॉग लिखा था, ठीक है। और मेक श्योर करें प्लेजरिज्म ना हो। अब प्लेजरिज्म को कैसे पता चलेगा, ये भी मेंटोर आपकी हेल्प करेगा, ठीक है। तो अब मैं यहाँ पे एंड कर रहा हूं और अब मैं आप लोगों के क्वेश्चन एंड आंसर की तरफ आता हूं स्पेसिफिकली। तो एक क्वेश्चन आया कि हाउ टू फाइंड अ मेंटोर। ये आप इसके लिए क्या करेंगे कि मेंटोर आपके लिए बेहतर वो है जो कि आपकी फिजिकल एनवायरनमेंट में आपके करीब हो। ये आपके इमीडिएट टीचर्स हो सकते हैं, सबसे बेस्ट वही है। किसी और डिपार्टमेंट के टीचर्स हो सकते हैं जिनकी रिसर्च नोटिस की जा रही है, जो इन्वॉल्व रहते हैं, जिनकी गुफ्तगू इन्वॉल्व है, या फिर एटलीस्ट वो फोन पे अवेलेबल तो हो, ठीक है, फोन पे अवेलेबल हो, उनके इनसे ईमेल की जाए, वो आपसे ज्यादा इन टच हो। तो इस तरीके से आप अपना मेंटोर ढूंढते हैं। और दूसरी बात है वो भी आपको टाइम दे। देन मेंटोरशिप जो है ना ये पूरा रिलेशनशिप है, ये एंड नहीं होता, ये एंड तक चलता रहता है। इसमें आप जो है ना इसमें तरह तरह की चीजें आती हैं। तो इसमें ये होता है कि मेंटोर आपको टाइम भी दे सके, तो दैट्स हाउ यू फाइंड मेंटोर। और इसमें जो है लक होती है, ठीक है। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैंने एवोल्यूशन, थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन से रिलेटेड कोई एक बात की थी, तो एक बहुत अच्छे रिसर्चर है, पाकिस्तान में ही है, तो उन्होंने मुझे देखा कि अच्छा मैं ये पोस्ट कर रहा हूँ, तो दैट पर्सन कॉन्टेक्टेड मी कि यार मैं तो इस पे कर रहा हूँ तो आ जाओ। तो देन हमारा फिर ऐसा पैचअप हुआ और फिर जो है ना वो प्रोडक्ट भी आई। हम लोगों ने एब्स्ट्रैक्ट पब्लिश किए थे जो कि यूरोपियन सोसाइटी फॉर एवोल्यूशनरी बायोलॉजी की वेबसाइट पे अभी तक अवेलेबल है। तो देखिए कैसे मुझे मेंटोर मिल गया। मेरा तो जस्ट इंटरेस्ट था, लेकिन मेरा इंटरेस्ट देख के, मेरी इंक्लिनेशन देख के और मेरी कमिटमेंट देख के, मेरी कमिटमेंट ये थी कि एटलीस्ट वंस अ वीक मैं आपके पास आऊंगा, ठीक है, आपके रिसर्च ग्रुप के साथ काम करूंगा, और मैं उस कमिटमेंट पे हमेशा पूरा उतरा हूं। और जब जब मुझे इमरजेंसी में भी बुलाया गया मैं पहुंच जाता था। तो मेंटोर आप में भी तो कुछ देखे। मेंटोर आपसे ये कहता है कि भाई फलानी चीज सर्च करके मुझे बताएं, और आप जनाब उसको 2 दिन तक रिप्लाई नहीं कर रहे, चाहे शर्म की वजह से नहीं कर रहे, हमने किया नहीं था, लेकिन आप रिस्पॉन्स ही नहीं दे रहे, तब आप मुझे ये बताएं मेंटोर आप पे क्यों इंटरेस्टेड होगा, ठीक है। तो इसमें आपकी एथिक्स आ जाएगी कि आप किस तरीके से लोगों से डील करते हैं। अच्छा, होम टू सेंड रिसर्च पेपर, जबरदस्त क्वेश्चन है, ठीक है, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। तो इसका आंसर अंडर ग्रेजुएट जो फॉर्म डी स्टूडेंट है वो किसी को नहीं भेजेगा। अब आप कहेंगे ये क्या करे, उसकी वजह यह है कि जब तक आपका मेंटोर नहीं है ना, आपको पता नहीं है कि वो जो रिसर्च आर्टिकल आपने लिखा है, देखिए आप जहां भी पब्लिश करने जाएंगे हर जर्नल की अपनी रिक्वायरमेंट है, हर जर्नल का रेफरेंस स्टाइल डिफरेंट है, हर जर्नल की हेडिंग डिफरेंट है, हर जर्नल इंट्रोडक्शन के अंदर कुछ और चीजें मांग रहा है, हर जर्नल के एब्स्ट्रैक्ट का जो पोर्शन है ना कुछ का हेडिंग के साथ है, कुछ का कम है, कुछ का वर्ड काउंट डिफरेंट है। तो वो कौन बताएगा, वो आपको मेंटोर बताएगा। वर्ड काउंट डिफरेंट है, वर्ड काउंट मींस अ लॉट कि चीजों को मैं कितनी डिटेल में बता सकती हूँ। और जर्नल आपको ये भी बता देते हैं भाई हमें 30 से ऊपर साइटेशन नहीं चाहिए, तो आपने पहले से लिख के रखा हुआ, आप सिर्फ ढूंढ रहे हैं कि कहां पे, ऐसा नहीं है। आप मेंटोर के साथ काम करते हैं और फिर वो जो रिसर्च अभी थोड़े थोड़े आंसर्स आपको मिल रहे हैं, सबसे पहला स्टेप है उसका एब्स्ट्रैक्ट पब्लिश कराना, उसका पोस्टर बनाए जिसमें आपने हर एक चीज रिवील नहीं की, लेकिन जब वो पोस्टर किसी इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस में होगा तो फिर आपका नाम आ जाएगा उसके साथ। अब जो कोई भी आपकी रिसर्च को कॉपी भी करेगा ना, यू हैव एन एविडेंस कि आप पहले थे, आप इस फील्ड पे पहले कर रहे थे, और उसको लिखने में आपको खुद ऑर्गेनाइजेशन पता चल जाएगी। फिर आपका जो मेंटोर होता है वो आपको बताता है कि भाई ये जर्नल्स है, ये विदाउट पैसे के पब्लिश कर लेते हैं, या मेरे पास ग्रांट में इतना पैसा है हम पब्लिशिंग फी पे कर लेंगे। देन फिर आप उन 2-3 जर्नल्स को टारगेट करते हैं, आप लिख के देते हैं, वो आपसे मेंटोर कहता है कि हम फॉर एग्जांपल ये है
फ्रंटियर्स इन न्यूरोसाइंस है या कौन सा, इसमें मैंने पब्लिश किया है। तो अब इसमें फॉर एग्जांपल एक कैटेगरी है 3000 वर्ड की, तो मैंने आपसे ये कहा कि भाई हम इसको टारगेट कर रहे हैं, 3000 वर्ड के अंदर मुझे ये दो, इतने इतने करो, टेबल्स तुमने इतने रखने हैं, और हाँ टेबल्स एंड फिगर्स तुमने इतनी इतनी रखनी है, तो आप उस हिसाब से लिखेंगे ना। लेकिन अगर आपने लिख लिया पहले और अब आप ढूंढ रहे हैं कि कहाँ का पब्लिश कर रहे हैं, तो दैट्स नॉट हाउ थिंग्स वर्क। हाँ ड्राफ्ट आप बना के रखते हैं, ठीक है, तो दैट्स अ डिफरेंट स्टोरी। तो मेरा शॉर्ट आंसर के रिसर्च पेपर की पब्लिकेशन हु टू सेंड, तो इसका यह है कि पहला स्टेप आप ये करेंगे, पहले एब्स्ट्रैक्ट कहीं पब्लिश कराएं, इंटरनेशनल, इंटरनेशनल जरूरी है, ठीक है। होता यह है कि मैंने जो अपनी रिसर्च में भी, मैंने जो मेरी पीएचडी की रिसर्च थी ना, मैंने एक क्वेश्चन किया था कि मैं इस क्वेश्चन को करूंगा, लेकिन सबसे बड़ा लतीफा ये हुआ था कि इंडिया से किसी ने पब्लिश करना, और जब मैंने इंडियन रिसर्चर को कांटेक्ट किया तो उसके पास आंसर्स ही नहीं थे मेरे क्वेश्चंस के। मैंने कहा कि अगर आपने ये चीजें की है तो मुझे इसका आंसर, तो उसके पास आंसर्स ही नहीं थे। लेकिन मेरे सुपरवाइजर ने ये कहा कि मतलब उसके कहने का मकसद ये था कि बेटा ये अब एतराज करने से काम नहीं चलेगा, मैं तो आपसे पहले से ही कह रहा था कि आपकी जो थॉट है ना, उस पे जो आपके प्रिलिमिनरी रिजल्ट्स हैं वो इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस में या कहीं आप भेज दें, ताकि आपका पहला नाम हो जाए। अब जब भी आप पेपर पब्लिश करेंगे आपको उस इंडियन ऑथर को साइट करना पड़ेगा, और मैंने किया भी यही, पीएचडी थीसिस में साइट किया, हर पेपर में साइट किया जो उस रिसर्च से रेलेवेंट था, लेकिन एतराज के साथ किया कि इसमें ये चीजें कमी है जो कि मेरी रिसर्च इसको पूरा कर रही है, ठीक है। तो ये चीज आपके जहन में होनी चाहिए। ये कौन बताता है? ये आपका मेंटोर बताता है, ठीक है। और मेंटोर का मैंने ये बताया जो कि अवेलेबल हो सके, और मेंटोर की फिर रिक्वायरमेंट आप पूरी कर सके। मेंटोर की रिक्वायरमेंट क्या होगी कि वो कहेगा कि फॉर एग्जांपल पहले आप थोड़ा बहुत आपकी अंडरस्टैंडिंग करेगा, आपको सर्च करना सिखाएगा, कैसे सर्च करना है। वो आपसे कहे फलाना आर्टिकल रीड करके हम इसको डिस्कस करेंगे, आप कहे नहीं हमारी तो पार्टी चल रही थी, अब संडे को थोड़ी काम होता है, तो फिर इसी तरह ही होगा, फिर नहीं होगा। हाँ आप क्लियर मेंशन करें कि 1 आवर मैं दूंगी और 1 आवर में मैं 1 पेज तक रीड कर सकती हूँ, इतना बिल्कुल क्लियर रखें। एंड आई वुड सजेस्ट किसी की भी मेंटोरशिप अगर आपको मिल जाता है कोई मेंटोर, आई वुड हाईली सजेस्ट, हाईली रिकमेंड मंथली गोल्स बनाए, मंथली, वीकली नहीं, मंथली, कि इस मंथ में हमने ये गोल अचीव करना। अब उस मंथली गोल्स को आप बेशक डिवाइड कर दें कि वीकली गोल्स हमारे ये हैं, लेकिन आपके मंथली गोल्स होने चाहिए, देन यू कैन गो। तो दिस इज द वन ऑफ द फंडामेंटल्स ऑफ रिसर्च फॉर अंडर ग्रेजुएट। इन चीजों का नहीं पता होता, स्टूडेंट रिसर्च ही नहीं करता, ठीक है, और घर बैठ के रिसर्च हो सकती है, ठीक है। तो किसी को अपना जो आपने राइटअप किया हो वो कराएं, तो उसकी सबसे अच्छी प्रैक्टिस आपकी होगी medium.com। अब medium.com को मुझे पैसे नहीं दे रहे कि मैं उसकी एडवर्टाइजमेंट कर रहा हूं, लेकिन यह कि दिस इज वन ऑफ द थिंग्स दैट आई रिकमेंड टू माय स्टूडेंट। उसमें यह होता है कि आप अपनी मर्जी की कोई पिक्चर भी उसके साथ लगाएं, आपको पता चलेगा कि पैराग्राफ कैसे लिखते हैं, व्हाट इज थीसिस स्टेटमेंट, क्योंकि बहुत सारे ब्रिलियंट स्टूडेंट होते हैं लेकिन उनका प्रॉब्लम होता है इंग्लिश लैंग्वेज का। तो वो बंदा सर पकड़ के रह जाता है कि यार इसकी तो बड़ी अच्छी सोच है लेकिन इसकी इंग्लिश वीक है। तो एटलीस्ट उस जब आप डिटेक्ट कर लेते हैं ना कि ये प्रॉब्लम है, फिर आप उसको एड्रेस भी कर सकते हैं। फिर उस मेंटोर की बातों का आपने बुरा नहीं बनाना, वो आपकी बेहतरी के लिए कर रहे हैं। उसके मंथली गोल में ये होगा कि बेटा अभी एब्स्ट्रैक्ट को छोड़ो, पहला मंथली गोल हमारा ये है कि मैंने तुम्हारा पैराग्राफ राइटिंग ठीक करनी है, ठीक है। फिर सेकंड मंथली गोल, फिर थर्ड मंथली गोल, ठीक है। तो अब क्वेश्चंस है, what are the resources for abstract publication, how can we do that, how can we send them to international conferences। इसका सबसे बेस्ट ये होता है कि अमूमन जैसे कि मेरी यूनिवर्सिटी में, सलीम हबीब यूनिवर्सिटी में जो सब्जेक्ट टीचर पढ़ाता है ना उनके व्हाट्सएप ग्रुप बने हुए हैं, ठीक है। तो मेरे जो व्हाट्सएप ग्रुप है ना उसमें जो आई कम अक्रॉस तो मैं उनको वो सेंड करता रहता हूँ। तो जैसे कि अभी मैंने रिसेंटली डॉन में आया हुआ था कि कोई ऐसे लिखना है, तो इस तरह की चीजें मैं उनको सेंड करता रहता हूँ। तो अब आप समझे मैं उनकी मेंटरिंग कर रहा हूँ या जो भी आप समझे, तो ये एक तरीका हो सकता है कि आप किसी ग्रुप का पार्ट बने, व्हाट्सएप का कोई ग्रुप हो या रिसर्च बेस्ड कोई ग्रुप हो, तो दैट विल हेल्प यू, ठीक है। तो इस तरीके से आप जो है ना स्टार्ट कर सकते हैं, आपको पता चलता रहेगा। जैसे अभी रिसेंटली आई कम अक्रॉस के कराची यूनिवर्सिटी को कुछ है, एक सेकंड मैं अभी शेयर करता हूँ, एक सेकंड, ये मुझे कहीं से नजर आया, तो आप इसको टारगेट करें, मैं अभी शेयर कर रहा हूँ। मुझे एक सेकंड दे दें।
स्क्रीन शेयर, ये ठीक है, ये रहा। अब ये इसको भी चेक करते हैं, ये क्या कह रहा है, फर्स्ट इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन करंट ट्रेंड्स इन साइंस टेक्नोलॉजी, साइंस इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी। आहा, कितनी प्यारी टर्म है, साइंस इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी। अब इसके थीम्स क्या क्या है, फिजिकल साइंस, बायोलॉजिकल साइंस, इंजीनियरिंग, टेक्नोलॉजी। कितनी बड़ी बड़ी बातें कर दी। इसकी एब्स्ट्रैक्ट सबमिशन है अप्रैल 15। आपके पास कितना टाइम है, सोचे इस पे वो करें, सबमिट करें। और फैकल्टी की फी है 3000, स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन है 1500, ठीक है। तो इस पे सोचें आप, इसको टारगेट करें, ठीक है, इसको रीड करें, इसके थीम्स क्या क्या है, इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस जनरेट करें। तो आपका मेंटोर आपको बताएगा कि यार ये जो है ना, ये पब्लिशेबल मुझे नहीं लग रहा, इसको इस तरीके से कर लूं, तो इसको टारगेट बनाए। मेरे पास तो एग्जाम्पल है, बाय गॉड, मैंने हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस, हैंड्स ऑन वो क्लास ली ड्रग लिटरेचर की, और उसमें मैंने उनको टारगेट दिया कि AKU का सिंपोजियम था, उसमें करें। तो मेरे 2 ग्रुप्स के एटलीस्ट, बल्कि 2 या 3 थे, उनके बेस्ड ऑन दैट वन क्लास, वन हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस, उनको वो एब्स्ट्रैक्ट एक्सेप्ट हो गए, ठीक है, बेस्ड ऑन वन क्लास। तो वन क्लास वो कितनी की थी, 1.5 घंटे की क्लास थी। उस 1.5 घंटे के अंदर वो इस काबिल हो गए कि एब्स्ट्रैक्ट पब्लिश करें, ठीक है। और मैंने उनसे ऑथरशिप भी नहीं मांगी, मुझे कोई जरूरत नहीं, ठीक है। हाँ, जरूरत तो है, ऑफ कोर्स है, लेकिन नॉट इन दैट सेंस। तो ये आप देखिए कि कितना असर होता है, बट यू नीड प्रॉपर गाइडेंस। तो इस पे भी आप किया जा सकता है, इस पे क्वेश्चंस किए जा सकते हैं कि हम कहां से स्टार्ट करें, तो क्या। तो मैंने जो उनको वे बताया था वो था पबमेड सेंट्रल। पबमेड सेंट्रल के अंदर बहुत सारे डेटाबेसेस हैं, तो उसके अंदर क्वेश्चंस कैसे करने हैं, बूलियन को कैसे यूज करना है। बूलियन कहते हैं इसको एंड और की टर्म को, क्या आपने एंड लिखना है कुछ किसी चीजों के साथ, कुछ सर्च के अंदर और आएगा, तो वो फिर टॉपिक डिफरेंट हो जाएगा। तो आज का हमारा टॉपिक ये है कि फंडामेंटल्स क्या क्या है, क्या क्या ऐसी बेसिक चीजें हैं कि यार बीइंग अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट मुझे ये तो पता हो ना, ठीक है। अच्छा, स्टूडेंट्स रादर देन SHU ग्रुप, तो वो अभी कुछ आपके स्टूडेंट्स ने ना जो डाउ के थे, उन्होंने एक रिसर्च नामी ग्रुप बनाया हुआ भी है। तो आप जब इन टच रहेंगे ना सर्कल के साथ, तो फिर आप जो है ना बहुत सारी चीजों से बेनिफिट उठा सकते हैं। ये जो फिक्शन बुक क्लब का इंट्रोडक्शन में किंजर ने काइंडली बताया था, तो उसमें भी जो होता है ना, तो उसमें मेरा डाउ का भी फिक्शन बुक क्लब और डेड पोएट सोसाइटी, तो वो है, उसमें लोग इन टच रहते हैं, कम्युनिकेशन रहती है, नेटवर्किंग का पार्ट रहता है। और इसी तरह मेरा SHU का भी अलग है, तो कुछ चीजों में वो दोनों सारे जो है ना मिल जाते हैं। तो ये आप इन टच रहें, ठीक है। तो अब वो जमाना नहीं रहा कि आप गुगू बन के हम आई थी, हम रीड कर रही थी, अब हम सिर्फ घर जाएंगी, ना किसी से बात करेंगी, ना कुछ करना, तो अब वो दुनिया नहीं रही, ठीक है। यू मिस आउट ऑन अ लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज। तो जो इस तरह के ग्रुप्स हैं, आई वुड हाईली रिकमेंड कि आप व्हाट्सएप ग्रुप्स का पार्ट बने, ठीक है। अब देखिए, आपने मुझे कांटेक्ट किया कि सर मुझे, फॉर एग्जांपल बहुत सारे स्टूडेंट कांटेक्ट करते हैं कि सर कोई भी चीज हो ना हमें बताएं। तो भाई मेरे कांटेक्ट तो देखिए, मैंने अभी आपको बताया कि पूरे स्टूडेंट्स हैं 300 400। अब मैं आपको कैसे याद रखूंगा। हाँ, जब आपने ग्रुप बनाया हुआ होगा ना रिसर्च नाम का या इस तरीके का, फिर मेरे लिए इजी होगा। whenever I come across such kind of stuff, मैं उसी वक्त आपको फॉरवर्ड कर दूंगा। और फिर जो है ना, अभी फॉर एग्जांपल मैंने एक ग्रुप बनाया हुआ, उसका नाम है, व्हाट्सएप ग्रुप है, प्रोजेक्ट्स एंड कॉम्पिटिशंस। तो अब टारगेट के साथ मैं करता हूं, क्योंकि ये जो 22 स्टूडेंट है, मैं इनकी मेंटरिंग भी कर रहा हूं। अगर तो आपने सबमिट किया, विन करना नहीं, सबमिट, अगर आपने सबमिट किया, यू विल स्टे इन दैट व्हाट्सएप ग्रुप। आपने सबमिट नहीं किया, मैं आपको व्हाट्सएप ग्रुप से किक आउट करूंगा। तो जब ये सख्ती रहती है ना, तो फिर हमारी विक्ट्रीज भी हैं। अभी ऐसे कौन हुआ था, टेक्नोलॉजी टाइम्स ने किया था, उसमें पाकिस्तान से बहुत सारे इंस्टीट्यूट ने किया था। SHU के 20 स्टूडेंट्स उसमें थे, उस लिस्ट में जो उन्होंने पब्लिश की, एंड 3rd पोजीशन उस स्टूडेंट को मिली थी। वो स्टूडेंट मेरी आर्टिकल राइटिंग व्हाट्सएप का ग्रुप है, वो उसकी पार्ट है, जिसमें हम पैराग्राफ कैसे बनाना है, ये चीजें उसका पार्ट थी। तो दिस इज वन स्टोरी। डाइस में हमारे 3 जो है ना प्रोजेक्ट्स जो कि इनिशियल स्टेज पे एक्सेप्ट हुए थे। फाइन, हम आगे नहीं जा सके, दैट्स फाइन, लेकिन आपके लेवल पे ये रिसर्च बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो कोविड की वजह से फंडिंग नहीं है, फाइन, लेकिन जब आपको रिसर्च का पता होता है ना कि बेसिकली रिसर्च क्या है, आपको कई दफा फंडिंग की भी जरूरत नहीं रहती। आप छोटी मोटी रिसर्च अंडर ग्रेजुएट लेवल पे हो सकती है,
ठीक है, तो उसमें क्या करना है, आपने कोई भी एब्स्ट्रैक्ट हो, कोई भी रिसर्च पेपर हो, उसको पब्लिशेबल आपने बनाना है। ठीक है, अभी मैं कुछ और क्वेश्चंस भी देख लेता हूं जो कि अगर मिस हो गया हो। अच्छा सर, हम इस लेवल पर रिसर्च कैसे पब्लिश कर सकते हैं, उनके रिसोर्सेज क्या हैं? तो वो मैंने आपको बता दिया। पबमेड सेंट्रल आपका एक हो सकता है कि मैंने किसी से बात नहीं करनी, दूसरा सर्वे बेस्ड हो सकता है। सर्वे बेस्ड में मैंने आपसे ये कहा कि वैलिडेटेड क्वेश्चन है। जब आप गूगल पे सर्च करने लगे ना, आपको किसी चीज का नहीं पता, आप स्लीप रिलेटेड कोई क्वेश्चनियर है, तो आपने खुद से डिजाइन नहीं करना। वैलिडेटेड क्वेश्चनियर जो ऑलरेडी किसी पब्लिश पेपर का पार्ट हो ना, उसका उठाना है। फिर आप जब पब्लिश करते हैं तो आप बता देते हैं कि हमने ये क्वेश्चन यूज किया था। ठीक है, तो सर सेकेंड ईयर स्टूडेंट्स हैव नॉट येट स्टडीड मच कोर्स येट, they are at basic level, so how can they evolve in research and which is the best topic for them to choose for research? क्यों नहीं कर सकते भाई? सेकंड ईयर, फर्स्ट ईयर कर सकती है, बिल्कुल कर सकते हैं सेकंड ईयर। ठीक है, बिल्कुल कर सकते हैं आप, एटलीस्ट एब्स्ट्रैक्ट लेवल पे आप कर सकते हैं। और आपको लगता है कि नहीं आर्टिकल बेस पे नहीं है, फाइन, तो मैंने तो आपसे आर्टिकल की शर्त ही नहीं रखी। सीवी बनाने के लिए एटलीस्ट एब्स्ट्रैक्ट तो हो। अभी मैं आपको टारगेट दे रहा हूं, अभी मैं पार्टिसिपेंट देख रहा हूं, 77 पार्टिसिपेंट थे अभी मीटिंग में। तो आपका ये टारगेट है कि ये जो कराची यूनिवर्सिटी में आया ना, मेरी यूनिवर्सिटी नहीं है, लेकिन आपको इससे फायदा होगा। इसमें एटलीस्ट इनको, ये जितने पार्टिसिपेंट है, आप लोगों ने एब्स्ट्रैक्ट भेजने हैं। आई डोंट केयर एक्सेप्ट होता है या नहीं, भेजे ना, सेकेंड ईयर के स्टूडेंट होके भेजे। तरह तरह के क्वेश्चन डिजाइन करें, स्टूडेंट को ऑथर बनाएं, आप ग्रुप ऑफ स्टूडेंट बनाए ना, अकेले में ना करें, 2-3 ग्रुप्स बना लें और फिर खुद से लर्न करें। यूट्यूब में आपको सब कुछ दिया हुआ है। जब बहुत कंफ्यूजन हो तो ठीक है, फाइन, कोई एक यूट्यूब व्हाट्सएप का ग्रुप बना ले कि भाई जो है ना, मुझसे कुछ चीज पूछनी हो तो वो कर लें, या दूसरे आपके जो स्टूडेंट्स हैं, आपके अपने सीनियर्स जो कि मुझसे ज्यादा एंगेज हैं काफी हद तक, उनसे पूछें, वो आपको बड़ा अच्छा गाइड करेंगे। तो आप लोग तो एक जनती टाइम में जी रहे हैं भाई। आपको ये पता है, मैं कई दफा हैरान होता हूँ, यूट्यूब पे जो बुक्स अवेलेबल है, यूट्यूब पे जो ऑडियो बुक्स अवेलेबल है, ये बुक्स आज से 50 साल पहले या 100 साल पहले किसी बंदे को पता चल जाती ना, वो यूट्यूब से उठता ही नहीं। इतना खजाना आपके पास है और आपको कदर ही नहीं। लिटरली आई वुड से कि आपको कदर ही नहीं, इतना कुछ अवेलेबल है। शुक्र करें कि हम इस टाइम्स में जिंदा है। ठीक है, इस टाइम्स की अपनी बुराइयां हैं, फाइन, वो हर जमाने की है। आप अपने पेरेंट्स से पूछे तो वो भी कहेंगे यार इस जमाने में ये बहुत बढ़ गया, या पता नहीं, वो फाशी हर जमाने में ही ज्यादा होती है। बहरहाल जो भी है ना, वो है, उसको छोड़े। नेगेटिव चीजें तो है, लेकिन पॉजिटिव चीज क्या है? आपके इस मोबाइल पे हजारों लाइब्रेरीज हैं, हजारों लाइब्रेरीज हैं। अब ये आप पे है कि आपके अंदर कितना तपड़ है। ठीक है, क्या आप एतराज करते हैं? नहीं 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 नहीं, ये नहीं, या आप कुछ सीखते हैं। खान एकेडमी का क्या है, एनीवन कैन लर्न एनीथिंग या लर्न एनीथिंग, इस तरह करके है, एंड दे आर राइट। इस वक्त आपको कौन रोक रहा है कैलकुलस सीखने में? सिर्फ आपका इंटरेस्ट नहीं है। तो इसीलिए आज की जो टॉक थी फंडामेंटल्स की, आई स्टार्टेड विद व्हाई। और इसीलिए जो हसन फरीद साहब थे, उन्होंने भी इंट्रोडक्शन में व्हाई पे गौर किया। तो व्हाई जब आपको मिल जाएगा ना, तो ट्रस्ट मी ऑन दैट, आई प्रॉमिस यू कि आपके 1 साल के अंदर कोई ना कोई तो एब्स्ट्रैक्ट आ ही जाएगा ना, और वो एब्स्ट्रैक्ट इंपॉर्टेंट होगा। ठीक है, जब आप इंटरनेशनल एप्लीकेशंस साइन करते हैं या कुछ भी करते हैं ना, तो उसमें कहीं ना कहीं आप मेंशन करेंगे, यू विल फील प्राउड, और आपके पास रेफरेंस होगा। आप कहते हैं मैंने फलानी लैब में काम करना है, ठीक है, फॉर एग्जांपल वो लैब है जो कि मेमोरी पे रिसर्च करती है। इंटरेस्ट कैसे शो करेंगे? आप क्या कहेंगे? आई एम वेरी मच इंटरेस्टेड, मैं जब छोटी सी थी उस वक्त से मेरा इंटरेस्ट था। आप कैसे करेंगे? यू वुड से एब्स्ट्रैक्ट, ये ले एब्स्ट्रैक्ट। एब्स्ट्रैक्ट नहीं है, पेपर नहीं है, फाइन, आप कहेंगे ये ले मीडियम ब्लॉग। मैं 2022 से ये मीडियम ब्लॉग लिखती आ रही हूँ, एंड नाउ इज 2024। इन 2 सालों में मैंने 10 ब्लॉग लिखे मेमोरी से रिलेटेड। देन अगर मैं रिसर्चर हूं, मेरे पास फंडिंग है, तो मैं आपकी एप्लीकेशन देखूंगा या उसकी देखूंगा जो कि सिर्फ गोल्ड मेडलिस्ट है? वो तो गोल्ड मेडलिस्ट है, फाइन, उसने बहुत कुछ अचीव किया, दैट्स अ वेरी गुड थिंग, और आप इसको यूज भी करते हैं। ठीक है, ये मैं आपको बताऊं, एम्प्लॉयमेंट में आपकी बड़ी हेल्प करता है, दैट्स फाइन।
लेकिन एक स्टूडेंट गोल्ड मेडलिस्ट है, एक स्टूडेंट थोड़ा सा कम है अच्छा वो भी, लेकिन कम है। लेकिन उसने क्या किया हुआ, उसने उस फील्ड के अंदर बहुत सारी चीजें लिखी हुई। तो आप मुझे खुद बताएं, अगर मैंने किसी को अपनी लैब में रखना है, गोल्ड मेडलिस्ट की बजाय जो थोड़े से कम मार्क्स होंगे, सेकंड पोजीशन है, थर्ड पोजीशन है, फोर्थ है, फिफ्थ है, ये टॉप 10 में है, मैं उसको ले लूंगा, क्योंकि दैट पर्सन उसने अपने एक्शन से शो किया कि हाँ यार ये चीज है। ठीक है, तो ये आपके जहन में होना चाहिए। मैं कई दफा राइटिंग से रिलेटेड देखता रहता हूँ, क्योंकि मैं नोवस बायोलॉजिकल के साथ एसोसिएटेड हूँ ना। तो अब मुझे, जब मैंने यहाँ पे जॉब ली थी ना, तो अब मैं आपको थोड़ा सा एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ कि मैंने जॉब इनसे कैसे ली थी, नोवस बायोलॉजिकल में। अब मैं यूएस में हूँ और आई एम एसोसिएटेड विद यूनिवर्सिटी ऑफ अलाबामा एट बर्मिंघम। ठीक है, तो एडवर्टीजमेंट आई कि हमें राइटर्स की जरूरत है, तो आप हमें अपना कोई सैंपल लिखें। मैंने क्या किया, मेरा एक ऐसे 2014 में उसे इंटरनेशनल ऐसे कंपटीशन विन किया था, सेकंड प्राइज $250 का, और यंग राइटर्स अवार्ड था। तो मैंने अपना वो लिंक सेंड कर दिया कि इसको देख लो, ये मेरा राइटिंग का सैंपल है। और नीचे मैंने क्या लिखा, वो ईमेल आज भी मेरे पास है। मैंने लिखा कि देखें, मैं घोस्ट राइटिंग करता हूं, मैं सारी सारी रात जागना और क्रिटिसिज्म बर्दाश्त करना, ये मेरी नेचर में अब आ चुका है। मैं ये चीजें करता हूं, मैं आपको डेडलाइन मीट करूंगा, मैं ये चीजें, ये मैंने बताया, और बताया कि मैं घोस्ट राइटिंग और ये सारा कुछ, एंड आई गॉट द जॉब। तो मेरे पास क्या था, मेरे पास अपने अमल से मैंने साबित किया था, क्योंकि जो बंदा राइटिंग की जॉब में है ना, मैं ऑलरेडी घोस्ट राइटिंग करता था। तो जब मेरे पास एक्चुअल जॉब आई जिसमें मेरे नाम के साथ चीजें पब्लिश होगी, तो आई हैड समथिंग टू से। मुझे पता है रातों को जागना क्या होता है। ठीक है, जो नया नया बंदा है, जो कि वैसे ही कभी लिख लिया कभी नहीं लिखा, वो तो नहीं समझेगा। लेकिन जो कि एडिटर थी, शी न्यू व्हाट आई वाज टॉकिंग अबाउट, तो देन शी गेव मी अ चांस। तो इस तरीके से आपको चांसेस मिलते हैं। ठीक है, एंड सिंस आई वाज इन यूएसए, तो एनवायरनमेंट का भी बड़ा फर्क पड़ता है। ठीक है, तो इसलिए आई वुड हाईली सजेस्ट कि आप लोगों को अगर बाहर जाने का मौका मिले कहीं ट्रेनिंग का, तो लाजमी इसको अवेल करें। अच्छा, और मैं देखता हूँ और क्या क्या क्वेश्चंस हैं। अच्छा, किसी का कोई क्वेश्चन मिस हो गया है तो वो दोबारा बेशक टाइप कर दे। मेंटोर का क्वेश्चन एड्रेस कर चुका हूँ, इसके अलावा सेकेंड ईयर स्टूडेंट्स का भी हो गया, मेंटोर का बात हो गई, पब्लिश रिसर्च की भी बात हो गई। हाँ, हाउ डू कैन शो अवर पोस्टर एज एविडेंस, बहुत अच्छा क्वेश्चन। जिस वेबसाइट ने उसको पब्लिश किया होगा उसका आप लिंक देंगे ना। जैसे अभी रिसेंटली था idon'tforwardhate.net, उन्होंने ऑफर किया था कि आप पोस्टर्स भेजें, तो वो मैंने अपने ग्रुप में भेज दिया। तो 2 ऑफ माय स्टूडेंट्स वो टॉप 10 में है, हर किसी को 10,000 रुपया मिलेगा। ठीक है, तो वो एविडेंस कैसे देखेंगे सीवी में? idon'tforwardhate.net वाले जो है ना, वो उन पोस्टर्स को मतलब पब्लिश करेंगे, अभी उनके नाम आए हुए, तो वो सीवी में उसका लिंक देंगे, वेब लिंक। ठीक है, कि अगर एम्प्लॉयर आपकी सीवी देख रहा है, वो अगर क्लिक करके वैलिडेट करना चाहे तो उसके पास एविडेंस है ना, क्लिक करेगा idon'tforwardhate, उसमें नाम लिखा हुआ। तो मेरे 2 स्टूडेंट ने ये किया हुआ, थर्ड ईयर के स्टूडेंट्स हैं वो। ठीक है, तो उन्होंने अपनी सीवी बिल्ड कर ली। ठीक है, मेरे पास एक अपॉर्चुनिटी आई, मुझे पता चला कि ये जो लोग कर रहे हैं, तो ये किया। मैंने भी उसमें किया था, मैंने नहीं विन किया। ठीक है, तो लाजमी नहीं है कि जो भेज रहा है या जिसका पीएचडी है, नहीं, यू नेवर नो, किस्मत की देवी पता नहीं किस वक्त मेहरबान हो जाए, यू नेवर नो। मेरा जस्ट उन्होंने कह दिया डिस्टिंग्विशेबल मेंशन, 1% का धेला मुझे नहीं मिला। ठीक है, लेकिन मेरे स्टूडेंट्स ने विन किया, तो मतलब मेरी खुशी जो थी ना, वो थ्रू द रूफ थी। व्हाट आर रिलायबल वेबसाइट्स टू कलेक्ट इंफॉर्मेशन फॉर आवर रिसर्च? रिलायबल आपके स्टेज पे अंडर ग्रेजुएट फॉर्म डी के स्टूडेंट्स के लिए पबमेड सेंट्रल या पबमेड, बस पबमेड को आपने पकड़ लिया ना, यही काफी है। मैं कह सकता हूं कि पबमेड, मेडलाइन या साइंस डायरेक्ट या दूसरे तीसरे, लेकिन अमूमन हर एक डेटाबेस से आपको ओरिएंट होना पड़ता है। हर डेटाबेस का एक डिफरेंट मिलियो है, उसकी एनवायरनमेंट डिफरेंट है। ठीक है, तो पबमेड के जो इंटरफेस है वो काफी सिंपल है। तो अगर आप सिर्फ pubmed/medline इसको लिखा जाता है, उसको ही पक्का कर लेना, तो दैट्स इनफ। कि उसका अच्छा यूज करना, कि उसको यूज कैसे करना है, ये फिर एक डिफरेंट स्टोरी है। बुलियन का इस्तेमाल कैसे करना है, एंड और कैसे लगाना है। ठीक है, और अपनी रिसर्च को जो है शॉर्टलिस्ट कैसे करना है। शॉर्टलिस्ट में कह रहा हूं, यानी कि उसको बहुत ज्यादा स्पेसिफिक कैसे करना है, क्योंकि रिसर्च क्वेश्चन हैज टू बी स्पेसिफिक। ठीक है, तो पबमेड सेंट्रल से आप शुरू करें, दैट वुड बी योर रिलायबल वेबसाइट।
और राइटिंग कैसे करनी है इसके लिए मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप जो है न्यू साइंटिस्ट की वेबसाइट पे जाएं, जो आर्टिकल आपको फुल रीड करने के मिल रहे हैं ना उनको रीड करें। साइंटिफिक राइटिंग की बेहतरीन एग्जांपल है, वो आपको बताते हैं कि ऑडियंस, नॉर्मल ऑडियंस से कैसे कांटेक्ट करते हैं। और तीसरी चीज medium.com, एटलीस्ट इसको यूज करें। ब्लॉग स्पॉट भी और भी है, इसको यूज करें और अपने जो एसेस लिखे है ना वो अपने क्लास फेलोज को भेजें, उनको बताएं यार मैंने कहीं भी ग्रामेटिकल मिस्टेक तो नहीं की, यार कौन सी चीज है जो कि आई लॉस्ट इट, या मैंने सेंटेंसेस बहुत बड़े बड़े तो नहीं लिखे हुए। ठीक है, तो इन चीजों को थोड़ा सा देखिए। और राइटिंग के बारे में डॉक्टर जॉर्डन पीटरसन की सुन ले जरा। ठीक है, अभी रिसेंटली उनकी 1 आवर की कंपाइलेशन है, उसमें यह है कि हाउ टू यूज रीडिंग एंड राइटिंग टू फाइंड योर पाथ, कि रीडिंग और राइटिंग को यूज करते हुए अपनी जिंदगी कैसे संवारनी है। ठीक है, तो ये काफी अच्छी कंपाइलेशन है, 1 आवर लॉन्ग है, बट यू वुड एंजॉय इट, तो आप उससे फायदा उठा सकते हैं। उसमें वो रीडिंग और राइटिंग की इंपॉर्टेंस बताता है। ठीक है, द मोर यू रीड द मोर यू विल बी एबल टू राइट। ठीक है, टू राइट 100 वर्ड्स एटलीस्ट आपने 10,000 वर्ड्स पढ़े हुए हो। ठीक है, तो रीडिंग की इंपॉर्टेंस बहुत इंपॉर्टेंट। व्हाट आर द रिसोर्सेज फॉर एब्स्ट्रैक्ट पब्लिकेशन? तो रिसोर्सेज, ये मरियम का क्वेश्चन है, तो वो मैं आपको एक एग्जांपल आपको दे दी कराची यूनिवर्सिटी की। ठीक है, तो ये अच्छा, आपको अगर नहीं पता, मैंने इसका तरीका ये बताया। प्रैक्टिकल वे है कि व्हाट्सएप ग्रुप्स का पार्ट बने। सेकंड प्रैक्टिकल वे ये है कि जो लोग रिसर्च पे वन वे और दी अदर इन्वॉल्व हैं उनके साथ रहें, कि वो ग्रुप्स का आपका पार्ट बने। थर्ड वे ये है कि खुद से गूगल करके इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस पाकिस्तान 2022, हो सकता है उसमें तुक्का लग जाए, तो तुक्का लग भी जाता है। ये वेज है। ओके, बहुत सारे लोग विलिंगनेस कर रहे हैं कि हम ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं, फाइन, तो कोई भी इस पे लीड लेके कर सकता है। ओके, अच्छा, ये एक कमेंट आया है कि आई ऑलवेज थॉट दैट वन हैज टू डू अ पीएचडी डिग्री टू डू रिसर्च। तो इसको तो मैंने आई होप कि मैंने बड़े जबरदस्त तरीके से उसको डीबंक कर दिया। यू डोंट नीड टू डू पीएचडी। और मैं तो ये कह रहा हूँ कि छोड़ो, आपका पीएचडी की तरफ माइंड ही नहीं है। आपने कम्युनिटी फार्मासिस्ट बनना है, आपने हॉस्पिटल फार्मासिस्ट बनना है कनाडा में। इवन देन मैं आपको कह रहा हूँ कि ये आपके लिए भी है, आपकी सीवी स्ट्रॉन्ग हो। ठीक है, तो मैं यहाँ पे अपनी टॉक जो है कंक्लूड कर रहा हूँ। और अब जो है मॉडरेटर्स आके कोई कंक्लूडिंग रिमार्क्स देना चाहे या कोई क्वेश्चन हो जो कि मैं भूल गया हूँ एड्रेस करना, तो वो मुझे गाइड कर सकते हैं कि मैं कैसे उसको एड्रेस करूँ। ठीक है, तो मैं मॉडरेटर्स को दावत दूंगा, किंजा को और दूसरे हसन फरीद साहब को, कि वो आए और कुछ कहना चाहे तो वो कह सकते हैं। Sir, I think itne questions the. And now I would like to call Muhammad Rafi, the founder of the Pharmacist channel, so that he can give a thank you note. अस्सलाम वालेकुम एवरीबॉडी, होप आई एम लाउड एंड क्लियर एंड थैंक यू वेरी मच सर। आपने अपने इतने बिजी स्केड्यूल में से टाइम निकाला और यकीन करें हमें टाइम का बिल्कुल भी पता नहीं चला इस डिस्कशन को लेके। ये 1.5 आवर्स की डिस्कशन हुई है, ये कैसे 1.5 आवर्स गए इसका बिल्कुल हमें पता नहीं चला। तो हम इंशाल्लाह आपको दोबारा भी बुलाते रहेंगे इतनी होलसम और इतनी जो है इंफॉर्मेटिव डिस्कशन के लिए, ताकि जो स्पेशली अंडर ग्रेजुएट लेवल पे मैंने खुद नोटिस किया अपनी पर्सनल लाइफ में, सिंस आई एम नाउ इन 5th ईयर, तो मैंने नोटिस किया कि बच्चों को इतनी ज़्यादा नो हाउ और नॉलेज नहीं होती। और इस प्लेटफॉर्म को बनाने का बेसिक डेफिनेट मकसद भी यही था कि स्टूडेंट्स जो अंडर ग्रेजुएट लेवल पे हैं उनके पास नॉलेज हो। सिंस आपने अभी कम्युनिटी फार्मासिस्ट इन कनाडा के बारे में बात की, तो आप जो लाइसेंसिंग एग्जाम्स हैं डिफरेंट हर कंट्री के, आई डोंट थिंक कि ज़्यादातर मेजॉरिटी लोगों को इसके बारे में पता होगा कि जो अंडर ग्रेजुएट लेवल पे हैं कि कौन कौन से लाइसेंसिंग एग्जाम्स होते हैं, उनके क्या क्या स्टेप्स होते हैं और क्या क्या सब कुछ क्या प्रोसीजर होता है। तो इसी के लिए ये है। एंड थैंक यू वेरी मच सर अगेन फॉर टेकिंग टाइम आउट फ्रॉम योर बिजी स्केड्यूल एंड फॉर गिविंग दिस होल knowledgeable talk in front of all the audience. Thank you. Guys, please subscribe to our YouTube channel and also follow us on Instagram and like our Facebook page. Thank you. ओके, थैंक यू सो मच। किंजा, अगर आप इजाजत दें तो आज की मीटिंग फिर कंक्लूड करते हैं, देन आई विल क्लिक ऑन द एंड मीटिंग फॉर ऑल।
Sure. Thank you so much, everyone. And thank you, Dr. Jamshed. It was a great session. Okay, pleasure is always mine. Okay, thank you so much. Or I'm now clicking end meeting for all.